We request all the participants to settle down. And I would like to request Dr. Rajeev Chaudhary, sir, Professor Ravi Shankar University, to start with the session. Yes, okay. Priyanka, please check. Recording is started. Hello. Respected Director of the Institute, Head IT Department, Chairman, Continuing Education Cell, both the coordinators and dear participants. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to each and every unit associated with this organization for providing the opportunity to speak in front of you. I am feeling great pleasure. I am directed by the organizers to speak on two different topics. First, I will talk about life and stress management. I will be with you for minimum 50 minutes. And in the second talk, I will be with you to discuss about the data analysis in earth sciences. We will discuss about the different tools and techniques, different inferential statistics, different statistical tools which are used to analyze data. Let's start first story on life and stress management. Dear students, we are living in this modern and knowledge era. Due to this, we are really in distress. So instead of giving stress on Osho stocks, which we should give stress on stocks which are helpful to retrench our weaknesses. These types of programs, these types of FDP, faculty development programs, especially this ATL FDP, these are very fructiferous and fruitful in nature. These retrench our weaknesses. For better communication, I will speak in both the languages, English as well as Hindi, as per the directions of the coordinators. दोनों भाषाओं में बात करेंगे. जहां आपको लगे कि मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, you may interrupt in between. आप संकोच न कीजिएगा, मुझे बताइएगा. I will proceed as per your interest and as per your expectations. आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे. मेरी बात ठीक से आप तक पहुंच पाए, so I divided my presentation into different parts. सबसे पहले बात करेंगे health and mental health की. Since both the terminologies, health as well as mental health, these are associated with our stress. दोनों का ही तनाव से संबंध है. फिर थोड़ा स्ट्रेस को, तनाव को जानने का प्रयास करेंगे. We will discuss about the concept of stress. कि what do you mean by stress? In the third part is of great importance. कि what is the association between our thought process, health and stress? हमारे जो विचारों की प्रक्रिया, हमारे स्वास्थ्य और तनाव, इन तीनों के बीच में आपसे क्या संबंध है? Since our objective is to eliminate stress, हमारा उद्देश्य है कि हम अपने आप को तनाव विहीन करें. चौथे भाग में बात करेंगे. In the fourth part, I will discuss about the association of the yoga with the thought process. क्योंकि कुछ I will demonstrate few yogic practices by the help of a video. In the fifth part, ladies and gentlemen, body and mind cannot be separated. हमारे शरीर को और मस्तिष्क को पृथक नहीं किया जा सकता. Something happens in our mind that affect our body, and something takes place in our body that affect our mind also. So we will discuss what type of link is there. कि दोनों के बीच में कैसा लिंक है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं. छठा भाग है. In this modern and knowledge era, we are lacking in spirituality. आजकल आध्यात्मिकता की कमी है. आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है वो एक आधुनिक युग की तरफ बढ़ रही है. लेकिन तनाव विहीन बनाने के लिए, तनाव रहित रहने के लिए हमें आध्यात्मिकता को तो अपनाना होगा. तो we will discuss about some spiritual concepts. And in the seventh part of my presentation, I will discuss about the stress and performance. तनाव और हमारे प्रदर्शन के बीच में क्या संबंध है.
कोई भी व्यक्ति विशेष, एवरी इंडिविजुअल वांट टू एक्सेल इन हिज और हर फील्ड, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का दिग्गज बनने का प्रयास करता है, अपने प्रदर्शन को बढ़ाना चाहता है। उसके लिए क्या तनाव आवश्यक है, यदि है तो कितना? फिर कुछ कॉमन क्वेश्चंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दीज. I will discuss about 2 or 3 questions with their answers. In the last part, I will demonstrate some practices we should practice daily. We should include it in our daily routine to avoid stress. तो शुरू करते हैं कहानी को। हेल्थ, यदि स्वास्थ्य की बात करें, if we talk about the stress, WHO defined stress, World Health Organization defined health in the year 1948. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में स्वास्थ्य को परिभाषित किया था। परिभाषा आपके सामने है। Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. This definition includes 3 different dimensions: physical, mental, social. हमें शारीरिक रूप से भी अच्छा रहना है, हमें मानसिक रूप से भी अपने स्वास्थ्य को अर्जित करना है, और एक तीसरा आयाम है, थर्ड डायमेंशन इज सोशल पर्सपेक्टिव्स. I will discuss with few examples, with few hypothetical examples. But later, WHO defined health in the year 1948. But later, WHO realized this definition is incomplete in science. WHO included 2 more dimensions which are essential later, and these are spiritual and emotional. So, to attain optimal health, we have to develop health in simultaneously with 5 dimensions: physical, mental, social, spiritual, emotional. इन 5 आयामों को अर्जित किए बिना, इन 5 आयामों की पूर्ति के बिना कोई भी व्यक्ति विशेष इस पृथ्वी पर सकारात्मक स्वास्थ्य के बारे में सोच नहीं सकता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक विकास भी अति आवश्यक है। एक परिभाषा और आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एक परिभाषा आप सबके समझ साझा करना चाहूंगा, that is given by Sushruta Samhita, the field of the part of Ayurveda. This definition is completely based on different types of balances: samadosha, samagnisha, samadhatu, malkriya, prasanna, atmendriya, man swasthya ityadi. Different types of balances are required to attain optimal health. First is some means a balanced state. एक संतुलन की अवस्था, समदोष. As per Ayurveda, we have 3 defects: वात, पित्त, कफ. तीनों में संतुलन नहीं होगा, that will lead to illness. समदोष समाग्निश्च. योग की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में बात करें, the heat is produced in our stomach. लेकिन अगर फिजियोलॉजी की बात करें, if you talk in the language of physiology, body temperature is regulated by our largest gland, that is known as liver. Liver अधिक heat produce करेगा, our nature will be acidic. Acidity की दिक्कत होगी। यदि वो heat कम produce होगी, our digestion will be sluggish. तो समदोष है, दोषों में भी समानता है। सम अग्निश्च means the production of heat should be optimal. Samadhatu, our body is constituted by 7 different elements: ras, rakta, mas, majja, etc. Balance is required among these. Next part is prasanna atmendriyaman. Our senses should be happy, our mind should be happy, and our atma is a drop of that cosmic consciousness that enters in our body and we are alive. That is known as atma. There is a small portion of cosmic consciousness. तो हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रसन्न रहें, यही एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। We can compare both the definitions. One is given by WHO, another is given by Sushruta Samhita. दोनों परिभाषाओं की तुलना, we are mature enough, we can compare किसमें अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। थोड़ा सा हमने जानने का प्रयास किया, तो हमें कुछ ऐसा अपने जीवन में करना है कि हम अपने 5 आयामों की पूर्ति करें। तो उसके लिए it is not possible to discuss all the 5 dimensions in the limited duration of time. I will give stress on only one dimension, that is mental health. थोड़ा सा, क्योंकि तनाव का, stress has a direct link with our mental health, इसलिए केवल mental health की बात करते। It is more than the absence of mental disorder. कोई व्यक्ति विशेष कहे कि मैं किसी भी मानसिक व्याधि से पीड़ित नहीं हूँ, I am not suffered by the mental disorder. No, he cannot be considered as individual free from or having positive mental health.
कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कोई मानसिक व्याधि नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट भी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब प्रश्न उठता है, क्वेश्चन अराइजेस कि मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या है? इट इज द एबिलिटी टू थिंक, ability to learn and ability to understand what we have to think, what we have to learn, what we have to understand. क्या सोचना है, क्या सीखना है, क्या समझना है? Answer is one's emotions and reactions of others. But in the simple way, we can say that mental health is also a balanced state. And what type of balance is required? It is a balance between self and environment. If we accommodate ourselves with the environment, it means we are having a good mental health. यदि कोई व्यक्ति विशेष अपना अनुकूलन कर लेता है बाहरी वातावरण से, उस दशा में हम कहते हैं कि यह व्यक्ति विशेष अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को रखता है। तो कैसे? There are several factors which plays a vital role in producing this balance. Maybe physical, psychological, social, cultural, as well as spiritual factors. So we have to develop all these factors to attain पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। यदि हम सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, इन सब कारकों के बारे में सोचना होगा। एक हमें एक कल्चरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विकास के बारे में भी सोचेंगे, और शारीरिक विकास तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शरीर के विकास का भी मानसिक विकास से संबंध है। शुरू में चर्चा हो चुकी है, बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगली बात करते हैं symptoms of improper mental health. Since Madam Mridhu Sahu allocated me only 50 minutes for this lecture, I will not discuss in detail about the symptoms. We know that eating too much, it's a symptom. Sleeping too much, eating too little, sleeping too little, having low or no, if अपने आप को यदि ऊर्जा विहीन समझें, वो भी एक तनाव का एक सिम्टम है, लक्षण है। If we suffered from an unexplained pain, यानी पेन हो रहा है, there is no root cause. Root cause is not identified. एक जड़ कारण क्या है, किस कारण से उपजा है, उसका पता नहीं है। Maybe the reason stress, feeling helpless, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, होपलेस, आशा विहीन महसूस करते हैं, कंफ्यूज, हमेशा शंकित रहते हैं। एक भूलने की बीमारी है, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, अपसेट होते हैं, चिंतित होते हैं और डरे हुए होते हैं। मे बी स्केयर्ड ऑफ द एयर जर्नी, स्केयर्ड ऑफ द वाटर, किसी भी तरह का डर हो सकता है। और अनहेल्दी रिलेशंस विद द फैमिली मेंबर्स एज वेल एज फ्रेंड्स। एक सामान्य भाषा में, इन लेमेन्स लैंग्वेज, एक आम व्यक्ति की भाषा में, जिसकी किसी से बनती नहीं है, ना घर के किसी सदस्य से बन पाती, ना दोस्तों से बनती, कोई पसंद ही नहीं करता है। Maybe due to stress, one of the cause may be stress. Mood swings, वह व्यक्ति विशेष आपको आज लगेगा इस पृथ्वी पर सबसे प्रफुल्लित वही है, और कभी लगेगा कि इससे अधिक दुखी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। यानी मूड स्विंग्स, सम और विषम परिस्थितियों में समान नहीं रहता है, वो भी एक लक्षण है। Unable to stop the wandering mind. Ladies and gentlemen, if we want to avoid stress, यदि हम तनाव रहित अपने आप को रखना चाहते हैं, to we have to stop the wandering mind. जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, उसको एकाग्र करने की क्षमता विकसित करनी ही होगी, अन्यथा तनाव दूर नहीं हो सकता। थिंकिंग ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ एंड अदर्स, ऐसा नहीं है कि जो तनाव से परिपूर्ण व्यक्ति होता है वो दूसरों को ही दुख देगा, दूसरों को ही तंग करेगा, दूसरों को ही हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, वो व्यक्ति स्वयं को भी हानि पहुंचाता है। एज पर द रिसर्च स्टडीज दैट हैव बीन कंडक्टेड इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान या शोध कार्य होते हैं, वो खुद को भी हानि करने का प्रयास करता है किसी ग्रुप में। एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क, वी ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक परस्यूट्स, हम सब शैक्षिक पेशे से जुड़े हैं, एंड वी हैव द ड्यूटीज विद द एकेडमिक परस्यूट्स। इफ वी आर अनेबल टू परफॉर्म आवर डेली रूटीन इन अ प्रॉपर वे, वन कॉज मे बी स्ट्रेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? तनाव के बारे में बात करते हैं। इट इज ए नॉन एडजस्टमेंट विद द चेंजिंग सिचुएशंस। इस पृथ्वी पर, इस वातावरण में क्या हमेशा समानता बनी रहती है? नो, सिचुएशन चेंजेस, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और हमें उन परिस्थितियों के प्रति अपना अनुकूलन करना है। वी हैव टू अकोमोडेट विद द changing situations. We have to adjust ourselves with the changing situations. If we are unable to adjust ourselves with the changing situation, that is known as stress.
और it is an imbalance between the dimensions of health, physical, mental, social, spiritual, emotional, पांचों dimensions के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, वही तनाव उत्पन्न करता है, वही तनाव है। तो कुल मिलाकर पहली बार किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी एक एंडोक्राइन एक्सपर्ट ने, कनाडा से था, कैनेडियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उन्होंने एक जो हैंस सीएलए थे, उन्होंने पहली बार परिभाषित किया स्ट्रेस को। अब हम बात करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ endocrine expert, improper response of the body to any demand made upon it. हमारे शरीर पर किसी तरह की डिमांड आई और उसका रेस्पॉन्स, हमारा रिएक्शन ठीक नहीं रहा, that is a condition of stress and it is characterized by reactions. What type of reaction takes place? वो प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी? प्रतिक्रिया हो सकती है muscle tension takes place, मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होगा, without voluntary contraction, ऐच्छिक कॉन्ट्रैक्शन के बिना ही तनाव उत्पन्न होगा, एक्यूट एंजाइटी लेवल होगा, द हार्ट रेट इंक्रीज, हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी, हाइपरटेंशन, एक रक्तचाप भी हमारा बढ़ेगा एंड दैट विल लीड टू शैलो ब्रीदिंग। तो ये थोड़े से सिम्टम्स थे इसके। तो गिटीनेस भी महसूस हम करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं इन ए स्पेसिफिक वे। आई विल डिस्कस बाय द हेल्प ऑफ ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक काल्पनिक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण को लेकर चलता हूं। आवर थॉट प्रोसेस, हेल्थ एंड स्ट्रेस। I have taken this example. It's a small portion, एक छोटा सा भाग है from an article written by Felicia E. Miller in the year 2001, and this article has been published in the journal, in a reputed journal that is indexed in PubMed and PubMed Central. You know that PubMed and PubMed Central is a reputed name in the biomedical sciences. उस आर्टिकल का छोटा सा भाग है, आर्टिकल का नाम था, उस लेख का नाम था Challenging and Changing Stress Producing Thinking. Example is in front of you. A patient had a severe adverse reaction to the medication prescribed by a doctor. डॉक्टर के बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाइयां दी, दवाइयां किस लिए दी? ठीक करने के लिए, लेकिन विपरीत परिणाम हुए, बीमारी और बढ़ गई। तो डॉक्टर was flooded with thoughts. डॉक्टर के दिमाग में दुनिया भर के विचार उत्पन्न होने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो दो डिफरेंट सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे एक उसके बाद अंत में, दोनों उदाहरणों के बाद अंत में कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो सिचुएशन नंबर 1, दिस सिचुएशन नंबर 1 इज नोन एज स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थॉट प्रोसेस। प्लीज सी दिस पिक्चर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे के क्रम में इसको देखने का प्रयास करेंगे। लेट्स अजम्पशन, मान्यता, डॉक्टर की मान्यता था क्या थी? आई मस्ट बी परफेक्ट ऑल द टाइम्स, आई नेवर डू मिस्टेक्स। इस प्रकार की मान्यता बना चुका था डॉक्टर कि मैं अल्टीमेट हूँ, इस ब्रह्मांड में बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं कभी गलतियां करता ही नहीं हूँ, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं टॉपर हूँ। लेकिन डॉक्टर कमिटेड मिस्टेक, क्या क्या गलती उसने? दवाई गलत दे दी। एस्केलेशन टेक्स प्लेस, आई शुड हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए था, इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। आई विल बी श्यूड, आई एम इनकम्पिटेंट, मैं असक्षम हूँ, इस प्रकार के विचार उठे। फीलिंग्स स्टार्टेड, द डॉक्टर वाज फुल ऑफ शेम, शर्म से भर गया। हेडेक स्टार्टेड and the doctor starts taking alcohol, शराब पीना शुरू किया and blame avoidance. ये था, यानी कि सिचुएशन थी कि एक गलती हुई ना उससे, एक सिंगल गलती ने उसको कहां पहुंचा दिया। दूसरी तरफ इसी को एक दूसरे एक रूप में देखते हैं, इसी एग्जांपल को, इसी उदाहरण को। सिचुएशन नंबर 2, that is based on the process of realistically evaluating thought process. Please see this picture from bottom to top. उसको हमने देखा था top to bottom, इसको देखने का प्रयास करेंगे bottom to top. Healthy assumption था, उसका assumption क्या था? I never do mistake, I am ultimate, I am perfect. यहाँ पर डॉक्टर का की पहले से ही मान्यता है। क्या मान्यता? Assumption is I am not perfect, I will sometimes make error. मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मुझसे भी कभी कभी गलतियां होने की संभावना रहती है। in this universe, every individual is bound to have some error. इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यता है कि वो त्रुटियां करेगा ही करेगा। इस प्रकार की मान्यता थी इस डॉक्टर की। डॉक्टर कमिटेड एन एरर, दवाई गलत दी। यहाँ पर फीलिंग शुरू हुई कि आई एम अनकंफर्टेबल, बट दैट डजंट मीन आई एम इनकम्पिटेंट। मुझसे गलती हुई है पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ, हो गई गलती। And the physical symptoms appeared. Doctor focused, concentrated, and the senses heightened. Senses बढ़ी तो, लेकिन एक अच्छा काम किया डॉक्टर ने कि डॉक्टर ने का बिहेवियर चेंज हुआ।
और अर्जेंट अटेंशन उसने इस क्राइसिस की तरफ दिया, और द डॉक्टर रिक्वेस्टेड colleagues टू हेल्प, और अपने सहयोगियों से लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। तो इन दोनों एग्जांपल्स के माध्यम से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जो पहला जो था रिएक्शंस हमारी, वो तनाव उत्पन्न करती है, दूसरी तनाव उत्पन्न नहीं करती है। लेकिन इन दोनों उदाहरणों के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं, नेगेटिव थॉट्स कैन डिटोरेट पर्सनल मेंटल हेल्थ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को क्षीण करते हैं, एज वेल एज आवर फिजिकल हेल्थ, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी क्षीण करते हैं। सिंस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सिंस दे कैन नॉट बी सेपरेट, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, एंड these cumulatively damaging professional relationships, हमारे व्यवसायिक संबंधों को, बॉस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, पुलिस के साथ, सभी के साथ हमारे संबंधों को खराब करते हैं। as well as these damage our personal relationship, maybe from in between parents and children, maybe between brother sister and other type of relations also, and that affect our decision taking ability, हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। and in day to day life every day we take several decisions, और एक गलत निर्णय हमें गलत में ले जा सकता है, एक अच्छा निर्णय हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। and our behavior depend on our thought process, हमारा किसको हम कहते हैं कि this individual is having a good behavior and his or her behavior is not up to the mark, कारण क्या है, our behavior is affected by our thought process, किसी भी व्यक्ति विशेष का व्यवहार उसके मस्तिष्क में किस प्रकार की विचारों की प्रक्रिया घटित होती है उस पर निर्भर करता है। तो we have to rectify our thought process, कुल मिलाकर हमें अपने विचारों की प्रक्रिया जो कि उत्पन्न होती है in the entirety of our mind, in our चित्त, in the language of योग, we have to rectify that, हमें उसको रेक्टिफाई करना है। तो अब बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ योग विद आवर थॉट प्रोसेस, थोड़ा योग पर आते हैं। There are various means and methods by using that, by practicing that we can avoid stress, we can eliminate stress। विभिन्न तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से, जिनके अभ्यास से आप तनाव से निजात पा सकते हैं, लेकिन योग भी एक अच्छा सरलतम साधन है। You will be agree with my comment, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि योग को अपनाकर जीवन में हम तनाव मुक्त अपने आप को करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम योग को जानने का प्रयास करते हैं। What do you mean by योग? There is no standardization in the field of योग। एक कमी है योग की, योग के क्षेत्र में कुछ स्तरीयता नहीं है। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान ऋषि पैदा हुए, उन्होंने समय समय पर अपने व्यक्तिगत विचार योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए, उसी योग की बात नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। मैं जो आप सबके समक्ष बात कर रहा हूँ वो एक स्तरीय साहित्य पर आधारित बात कर रहा हूँ। एंड वन इज out of that standardized literature one is given by Maharshi Patanjali. Maharshi Patanjali described or defined yoga in the Yoga Sutra, and the definition is yogasya chitta vritti nirodha. What do you mean by this shlok? Yoga is a cessation. Cessation means to stop, rokna. What do we have to stop? We have to stop the thought waves. And in the language of yoga ki bhasha mein, the thought waves are known as vrittis. And the question arises, from where our vrittis, from where our thought waves originates? These originates from our mind stuff. And the question arises, what do you mean by mind stuff? Mind stuff means the entirety of human mind is known as mind stuff. We can compare this to understand in a proper way. We can compare this with the hard disk of a computer. Everything is stored, same as our all workings are stored in the subconscious mind. That storage is known as mind stuff. That storage is known as chitta. That is a cosmic mind. That is a small portion of the cosmic mind, and that is noticeable everywhere. That is all pervading. So cessation of the thought waves of mind stuff is known as योग। जब हम अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने में सक्षम हो जाते हैं तो बचा क्या? उस दशा में तो जितनी भी वृत्तियां हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उत्पन्न ही नहीं होंगे। नहीं उत्पन्न होंगे तो तनाव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर by practicing yoga we can stop the wandering mind, and to avoid stress it is very essential to stop the wandering mind। लेकिन आज की युवा पीढ़ी में जितना भी हम मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं उतना ही भटकता है। तो we have to develop the ability, हमें वो क्षमता विकसित करनी होगी to stop the wandering mind। जो ध्यान इधर-उधर भटकता है उसको एकाग्र करने की क्षमता विकसित करनी होगी। There are various means by using सहज योग meditation,
by practicing transcendental meditation, by practicing concentrative meditation, by practicing mindfulness meditation. There are various techniques. By practicing that, only you have to spend only 20 or 15 minutes. कोई बहुत अधिक हमें समय नहीं चाहिए. दिन अपने दिनचर्या में 15-20 मिनट पर्याप्त है मेडिटेशन के लिए आप कीजिए. एंड बाय प्रैक्टिसिंग दैट वी कैन स्टॉप द वंडरिंग माइंड. तो ये थी योग की बात. अब आई विल डिस्कस अबाउट द लिंक बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच में क्या संबंध है, इसको भी जान लें. एक वाक्य आपको याद होगा जिसकी बात की थी मैंने, कि माइंड एंड बॉडी कैन नॉट बी सेपरेटेड. मस्तिष्क और शरीर को पृथक नहीं किया जा सकता. कुछ भी मस्तिष्क में घटित होगा शरीर को अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा. शरीर में कुछ भी घटित होगा वो मस्तिष्क को भी अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा. आई विल शो यू बाय द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स. मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा एक काल्पनिक और परिकल्पनापूर्ण उदाहरणों के साथ. अब बात करते हैं लिंक की. There are inseparable links between mental and physical health. We have discussed already. And one report, one point, one invention, one research-based findings I would like to share with you. As per the WHO report, as per the World Health Organization report, more than 100 million people suffer from the mental health disorders in Western Pacific region. And the depressive disorders alone are responsible for 5.73% of these diseases. जितने भी ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें से 5.73% अकेले निर्भर करते हैं कि ड्यू टू आवर इल मेंटल हेल्थ. तो बहुत बड़ा एक प्रतिशत है. लेकिन हम तो बात कर रहे थे कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड. बॉडी माइंड कनेक्शंस की बात कर रहे हैं. और बॉडी माइंड कनेक्शंस दो प्रकार से घटित होते हैं ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिक कनेक्शंस वी कैन नॉट स्टॉप. आप कितना भी प्रयास कर लो घटित होगा ही होगा, रोक ही नहीं सकते. These are beyond our control. These are considered as our limitations, हमारी सीमाएं. And directions may be different. Automatic mind to body. It starts from body and affect the mind. Second one is automatic body mind. On the other hand, some are deliberated. We perform deliberately. स्वेच्छा से करते हैं. और डायरेक्शन दोनों प्रकार की हैं. Deliberated mind body expression as well as on the other hand deliberated body mind expressions. We will discuss about all four connections. Two comes under the category of automatic and two comes under the category of deliberate. Let's again I repeat. These are, first is automatic mind body, second is automatic body mind, third one is deliberated mind body, fourth one is deliberated body mind. We will discuss one by one. Let's start with the first. First one is automatic mind body phenomena. Again I repeat, दोबारा दोहराता हूँ कि something takes place in our mind and that affect our body. कुछ भी हमारे मस्तिष्क में घटित होता है automatically. We cannot stop. And that affect our body also. There is a long list. Crying, initiation takes place from the mind. That affect the body. Laughing, facial expressions, body language, emotions, cognitive activity, and one hypochondria. हिंदी में हम कहते रोग भ्रम. It is proved by the research studies. अनुसंधान या शोध कार्यों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है. कोई व्यक्ति सोचता है without any disease, if we think I am suffering from this disorder, I am suffering from disorder, actual में ही we suffer from that disorder. वो व्याधि हमारे शरीर को वास्तव में ही जकड़ लेती है. That is known as hypochondria. But initiation takes place from the mind and automatically the disease takes place in the body. Several psychosomatic disorders, जितने भी psychosomatic disorders हैं वो भी इसी से उत्पन्न होते हैं. And you all are associated with the field of research. आप सब अनुसंधान या शोध से जुड़े हैं कि there is a concept of experimental group and control group. And in control group, to the control group, we give this placebo effect. That is a mental treatment without the actual treatment. Let's discuss about the second, automatic body mind phenomena. Automatically takes place in the body that affect the mind. Examples are, we can divide into two different categories. First one is physical pain, second one is physical pleasure. को शरीर में किसी भी तरह का प्लेजर हो वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा. और शरीर में कोई भी दर्द घटित होता है वो भी मस्तिष्क को. पेन में भी heat, cold, internal pain in the organs
maybe joint pain, and in the category of physical pleasure, simple example is food. We take food physically. यदि अच्छा भोजन लेते हैं, our mind refreshes. Bath, our body take bath. शरीर तो स्नान ग्रहण करता है, our mind refreshes. Sex is also the example of that. So these are the automatic body mind phenomena. कि something takes place, something we perform by the help of body, and that affect our mind, but automatically that takes place. Now I will discuss about the third part that comes under the category of deliberated activity. स्वेच्छा से हम करते हैं, deliberately करते हैं, deliberated mind body expression. First one is the mind body practices. So in our daily life we should perform few mind body practices, and acting is also an example of deliberated mind body expression. You may perform imagery practices, autogenic practices, meditation. Meditation, ध्यान एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा अभ्यास है that comes under the category of deliberated mind body expression. So we should keep in our mind कि यदि हम ध्यान की गतिविधि करते हैं, if we perform meditation or if we include meditation in our daily task, तो वो केवल हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, यह हमारा भ्रम है. That will affect our body also, since there is a connection between body and mind. तो मेडिटेशन केवल मानसिक गतिविधि नहीं है, that indirectly, अप्रत्यक्ष रूप से, that affect our body also, biofeedback also. And let's discuss about the fourth that also comes under the category of deliberated activity, deliberated body mind phenomena, respiratory practices. These are known as pranayama. We inhale, we retain the breath, we exhale physically by the help of the body, by the help of the involvement of the body, by the involvement of the lungs, by the involvement of the nostrils. We perform this respiratory practice. But these respiratory practices affect our mind also. Research, if we do any type of activity, हम किसी प्रकार की गतिविधि करते हैं, different types of effect takes place. One is spontaneous effect, अभी किया अभी तत्काल प्रभाव दिखा. One is delayed effect. Suppose today we are practicing, the effect may appear after few days, few months, or this is known as a delayed effect, दीर्घकालिक प्रभाव. And third one is a cumulative effect. If we do different practices, 4-5 अभ्यास किए, एक का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सब मिलकर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं. There is a possibility that is known as a cumulative effect. As per the research findings, शोध के एक अनुसंधान के जितने भी फाइंडिंग्स हैं उनके अनुरूप, these respiratory practices has both the effects. These has spontaneous effect. आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम के 4-5 रिपीटिशन लगाइए, immediately our mental status changes. आप देख लीजिए. और these respiratory practices also has long term effect, delayed effect, दीर्घकालिक प्रभाव भी इनके हैं. Second one is physical exercises known as yogasanas. Not only yogasanas, different types of other practices also, maybe circuit training, maybe weight training, maybe running on the treadmill also, maybe aerobic practices, aerobic exercises, maybe dancing, any type of physical activity, and also yogasanas, maybe Surya Namaskar, maybe asanas in a standing position, maybe prone lying position, supine lying position, sitting position. And the third one is a progressive relaxation technique. आजकल प्रचलन में है, करते हैं, simple है. Simple सा क्या करना है? This progressive relaxation technique has only 3 parts. We contract the body muscles and we concentrate on that. We relax the muscles, we concentrate on that, and in the third part we try to differentiate between the contraction of muscles and the relaxation of muscles. This is known as progressive relaxation technique. A complete body relaxation के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, but it is advised by the eminent scholars. बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान विदुषियों ने सुझाया है कि either we should start from toe to head or head to toe. तो ये हमने बात की बॉडी माइंड कनेक्शंस के बारे में, और आगे चलते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं. क्योंकि शुरू में बात की थी, इन द इनिशियल पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन आई हैव सेड कि एज पर द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा थी, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक सभी चाहिए ना. तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं इसकी? क्योंकि इसकी कमी है आज के इस आधुनिक युग में.
और एक उम्र के बाद ये आध्यात्मिकता की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। युवा तो बहुत मुश्किल है युवा को इस क्षेत्र में के बारे में सोचने पर मजबूर करना, लेकिन जानना चाहिए कि व्हाट इज द यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी की बात करें, एज पर योग इसको थोड़े कंसेप्ट को केवल 5 मिनट में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन विद इन 5 to 10 मिनट्स अबाउट द फिजिकल पर्सपेक्टिव्स। एज पर योग देयर आर 72,000 नाड़ीज इन आवर बॉडी। एक योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। What do you mean by nadis? Nadis are micro vessels where the prana flows. आप लोग आपस में झगड़ते हो, कभी हो सकता है, मैं काल्पनिक उदाहरण है, झगड़ते हो तो क्या मैं तेरे प्राण निकाल दूंगा, कहते हैं ना। What do you mean by प्राण निकाल दूंगा? It means प्राण is a vital force. Due to that we are alive. जो हमें जिंदा रखे उसको निकालना चाहते हैं ना, एक काल्पनिक उदाहरण में हम कर रहे हैं बात। तो प्राण, we have the drop of cosmic consciousness, due to that we are alive, that is known as pran. And in our body pran flows, and pran flows through these micro vessels. और ये प्राण फ्लो करते हैं हमारी सूक्ष्म नालिकाओं से, we cannot see with the naked eyes. And out of these 72,000 nadis, 3 are main: Ida, Pingala and Sushmana. Let's discuss one by one. Ida means our left nostril. This has the cold effect. और शीतलता को कौन दर्शाता है? चंद्रमा. Due to its cold effect, this left nadi, Ida nadi, is known as Chandra nadi. चंद्रमा शीतलता को प्रदर्शित करता है. And second one is Pingala nadi. This Pingala nadi is our right nostril. This has warm effect. And warm up किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सूर्य. Due to its warm effect, this nadi is known as सूर्य nadi. जब आप अपने पर एग्जांपल लीजिए ना, जब आप शांत मन से चित्त आपका ठीक रहेगा तो और हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है, बहुत अधिक हल्का सा राइट ब्लॉक रहता है। और जब आप गुस्से में होगे, झगड़े पर उतारू हो जाएंगे तो राइट. इट मींस वन इज एसोसिएटेड विद वार्मनेस एंड वन अनदर इज एसोसिएटेड विद कोल्डनेस. फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, फॉर ऑप्टिमल हेल्थ बैलेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज रिक्वायर्ड. ऑप्टिमल हेल्थ के लिए हमारी ईडा और पिंगला नाड़ी में संतुलन चाहिए. गो टू योर पास्ट, अपने भूतकाल में चाहिए. बीमार पड़े होंगे ना, बुखार चढ़ा कभी, आप याद कीजिए, बुखार चढ़ेगा तो आवर वन नॉस्ट्रिल ब्लॉक्स, याद कीजिए. इट मींस imbalance takes place between ईडा and पिंगला नाड़ी. So for attaining optimal health, we have to maintain the balance between our ida and pingala nadi. That is maintained, that is performed by the help of the third nadi, and the third nadi is Shushmana. This is the junction between these two, situated at our spinal cord. वो हमारी, and that takes place by the help of body chakras. नाड़ियां क्या थी? सूक्ष्म नालिका. क्या करती हैं? प्राण फ्लो करते हैं वहां से. तो दूसरा शब्द हमारे सामने है. The second word is also in front of us, that is known as body chakras. Body chakras, these chakras are energy centers, ऊर्जा के स्रोत हैं. Several types of energies are produced by our chakras. From, as per yoga, there are 7 chakras from bottom to top: Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahata, Vishuddhi, Agya and Sahasrara. These are the 7 chakras. And थोड़ा और स्पेसिफिक में विशेष रूप में जानने का प्रयास करते हैं लोकेशन के बारे में. मूलाधार चक्र is situated at the opening of anus, or we can say that situated at our suprailiac gland. And the next chakra is Swadhisthana chakra. Swadhisthana chakra is situated at our sexual organs, or we can say that situated at our gonads. Next is Manipur chakra. Manipur chakra is situated at our nabi, stomach, near to pancreas. But in some literature you will see this is situated near to our adrenal gland or pancreas. Next is Anha chakra, situated at our chest region, or we can say that our heart. Next is Vishuddhi chakra. Vishuddhi chakra is situated our neck region, or we can say that is situated our thyroid gland. जिस व्यक्ति विशेष के विशुद्धि चक्र में त्रुटि आएगी उसको एडिपोसिटी या लीननेस की समस्या आएगी, थायराइड ग्लैंड, थायराइड प्रॉब्लम होगी. तो हमें विशुद्धि चक्र की फंक्शनिंग को ठीक करना. आजकल तो एडिपोसिटी की, मोटापे की बीमारी है, दोनों तरफ है, दोनों एक्सट्रीम है. डिपॉजिट की भी हो सकती है, फैट सेल डिपॉजिट की ज्यादा, या लीननेस, किसी का वेट बढ़ भी नहीं रहा. दैट इज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ दिस विशुद्धि चक्र. Second one is Agya chakra. Agya chakra is situated at in between our eyebrows, or we can say that is situated at our master gland, and we know that pituitary gland is known as the master gland. And the last chakra
situated at our vertex, top of the head, or we can say that that is situated at our smallest gland of the body, and we know that pineal gland is known as the smallest gland. हम तो क्या बात कर रहे थे? We were discussing about how to attain positive health. बात हो चुकी है. That takes place by maintaining the balance between Ida and Pingala Nadi. You have to maintain the balance, and that balance takes place by the help of third Nadi, that is known as Shushman Nadi, and that takes place by the help of body chakras and by the help of the activation of the Kundalini. तीसरा शब्द हमारे सामने है कुंडलिनी. What do you mean by Kundalini? नाड़ियां क्या थी? माइक्रो वेसल्स. चक्र क्या थे? एनर्जी सेंटर्स. कुंडलिनी क्या है? This is known as the spiritual energy. Every individual on this earth is born with spiritual energy, but that is hidden. We have to activate this spiritual energy. हमें इस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना है. There are various means and methods by practicing that we can activate, and this is situated in activated state. This is situated at the Mooladhara chakra, opening of anus, on suprarenal gland, or we can say that on the last part of the spinal cord, that is triangular in shape, that is known as sacrum, that is known as sacral bone, and we have to activate this spiritual energy. And if we compare with the physical body, किसी भौतिक पदार्थ से हम कहें, इसकी तुलना करें, तो this is like a rope or a snake having 3.5 rounds, and each round has a specification. First round dominates sattva, जिसमें ये round dominate करेगा, the individual will be full of purity and enlightenment. वो व्यक्ति प्रकाशवान ऊर्जावान होगा. और दूसरा राउंड है that denotes rajas, जिसमें इसकी अधिकता होगी. The individual will be full of vasanas and kriyas. तीसरा राउंड डोमिनेट करता है, जिसमें डोमिनेट करेगा तमस. The individual will be dull minded. वो व्यक्ति जड़ बुद्धि होगा, बुद्धिहीन होगा, उसे कुछ समझा ही नहीं सकता. But ladies and gentlemen, we all have all these three universal modes. हर व्यक्ति विशेष में सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है. हम ये नहीं कर सकते हम ये मोड नहीं है. जिसमें सत्व की अधिकता होगी उसको हम कहते हैं he is a संस्कारवान, और जिसमें रजस और तमस की होंगी हम कहेंगे कि he or she is संस्कार विहीन. It means our sanskaras has been fixed on the basis of the proportion of these three. लेकिन हम तो रिजुवेनेशन की बात कर रहे हैं, सकारात्मक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तनाव मुक्ति की बात कर रहे हैं. बैलेंस चाहिए. दोबारा से रिपीट करते हैं. किसके बीच में? ईडा पिंगला. किसके माध्यम से हुआ? सुषुम्ना. किसके माध्यम से उसने किया? चक्रों में. चक्रों ने किसके माध्यम से? कुंडलिनी. इनएक्टिवेटेड स्टेट में कुंडलिनी कहाँ है? मूलाधार पर. And after activation, Kundalini reaches Sahasrara via chakras through Sushumna Nadi. From Mooladhara to Svadhisthana, Manipur, Anahata, Vishuddhi, again Sahasrara reaches our vertex, and the self-realization takes place. Individual leads to self-realization, and in simple words, we can say that expansion of consciousness takes place. हमारी चेतना का विस्तार होता है. I hope you have basic knowledge of psychology. मनोविज्ञान में माइंड की कितनी स्टेट्स हैं? 3. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड. What do you mean by conscious mind? We all are in conscious mind. Means we are familiar with our surroundings. I am a speaker, you are a listener. AC है, सामने मेरे डेस्कटॉप है, और we all are familiar about the surroundings. Means we are in conscious mind. What do you mean by unconscious mind? अचेतन मन. When we become unconscious, हम सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में कब होते हैं? ड्यूरिंग स्लीप या ड्यूरिंग द इंजेक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया. एंड व्हाट डू यू मीन बाय सबकॉन्शियस माइंड? और हम सब में कौन सा माइंड एक्टिवेटेड है? कॉन्शियस. व्हाट डू यू मीन बाय सबकॉन्शियस माइंड? You will see in the literature, in the psychology books, something takes place in the mind, but we do not have an idea about that functioning. That is known as subconscious mind. पर है क्या? ये सामने बैठे हैं मेरे, आज मैं स्पीक करूं, ये लिसनर है. परिस्थिति आज से 20 साल बाद मैं रिटायर हो चुका हूँगा, ये जीवित रहा तो ये मेरी उम्र में के आसपास होंगे. इन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन पर देखा, घूर कर मुझे देख रहे हैं. ये व्यक्ति कहीं देखा हुआ लग रहा है, क्योंकि चेहरा देख चुके हैं ना. मेमोरी शार्प होगी, इंटेलिजेंट है, इज इंटेलिजेंट, याद आ गया, मेमोरी अच्छी है. He came to me, sir, you delivered a lecture on stress management in NIT Raipur. मैं बुढ़ा हो चुका हूँगा,
स्मरण शक्ति क्षीण हो चुकी होगी। ट्राई टू रिकॉल, याद करने का प्रयास किया, अनेबल टू रिकॉल, याद नहीं आया। ये कहते हैं सब छोड़िए ना, बुढ़े हो गए, आपकी स्मरण शक्ति जा चुकी है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि यू डिलीवर्ड ए लेक्चर किया, आपने लेक्चर दिया। दोनों प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बात करने लगे। दूसरी, मेरे कॉन्शियस माइंड ने सोचना बंद कर दिया था कि मैंने कहा एनआईटी रायपुर में लेक्चर दिया, हम दूसरी बातों में लीन थे। फिर भी 5 या 10 सेकंड्स के बाद मुझे याद आया, आई डिलीवर्ड ए लेक्चर इन ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय मैडम मथ्यू। इसका अर्थ हुआ कि मैं उस क्षेत्र में, मेरे कॉन्शियस माइंड ने तो सोचना बंद कर दिया था, पर एक कॉर्नर असिस्ट कर रहा था, वन कॉर्नर वाज असिस्टिंग। दैट असिस्टेंस इज नोन एज द फंक्शनिंग ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। जिस व्यक्ति विशेष की सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग अच्छी होगी, वो अधिक अचीव कर पाएगा अपने जीवन में। तो हमें केवल अपने कॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। We have to improve the functioning of our subconscious mind by activating this kundalini, by maintaining the balance between ida and pingala nadi. The expansion of consciousness takes place, means our subconscious mind starts functioning. लेकिन योग कहता नहीं, मनोविज्ञान अधूरा। मनोविज्ञान में माइंड की कितने स्टेट है? 3, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। मनोविज्ञान अधूरा। योग कहता है नो, instead of 3 there are 4 states of mind. चौथी है सुपर कॉन्शियस माइंड, परम चेतन मन। योग कहता है कि we can attain the state of super conscious mind also. तो कैसा तनाव है अब। लेकिन एक और बात मैं करना चाहूंगा कि we should not be surprised after hearing this. This is in red color you are seeing, this is sacral bone, sacrum in inactivated state. That is the last part of our spinal cord. कि इस यहाँ जहाँ पर कुंडलिनी निवास करती है, the spiritual energy resides in inactivated state. After hearing the word this sacral bone, we should not be surprised. You all are engineers या दूसरे क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रमाणों पर आप बात को एक मानते हैं, लेकिन उसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। This bone is known as holy bone. This sacrum or sacral bone is known as holy bone. पवित्र अस्थि इसको कहा जाता है। कोई नई बात नहीं है, it's not new. The concept was present in Hippocrates in 400 BC. This is known by the Hermostone. इसको Hermostone के नाम से जाना जाता था, और यह मान्यता रोमन लोगों में भी थी, जिसको कि सेक्रेड बोन कहा जाता था। और इतना ही नहीं, उस समय हिप्पोक्रेट्स के टाइम की बात करें, रोमन लोगों के समय की बात करें, तो why this bone is known as holy bone? इसको अच्छी अस्थि, पवित्र अस्थि क्यों कहा गया? किसी ने कहा this protect our genital organs, इसलिए होता होगा। एक समूह ने कहा कि we use this bone in the religious practices, यह कारण हो सकता है। लेकिन लास्ट डिसीजन लिया गया on the basis of observations। भाई आप तो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड बातों पर विश्वास करते हो, लेकिन जहां एक्सपेरिमेंट उत्तर नहीं देता, we draw conclusions by the help of the observations। तो यहाँ बात करते हैं कि लास्ट निर्णय क्या था? लास्ट डिसीजन वाज कि this bone is responsible for our rebirth। और हर धर्म में, एक मुस्लिम पे एक एग्जाम्पल है हदीथ का, अबू हुरैरा द्वारा रचित, उसमें साफ लिखा है यह हड्डी कभी नष्ट नहीं होगी, अल्लाह इस हड्डी से नए शरीर का निर्माण करेगा। ईसाइयों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, पारसियों की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, किसी की भी बात करें, किसी ना किसी रूप में इसका जिक्र है। तो और इंडियन आइकनोग्राफी में, भारतीय प्रतिमा विज्ञान में तो इसकी चर्चा है। एंड ये कोई ऐसा नहीं, आई हैव टेकन दिस प्रूफ, ये साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दैट वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन इन द ईयर 1982, आज की बात नहीं है। और ऑस्कर शुगर ने इसको लिखा था। तो अमेरिकन जर्नल ऑफ जो मेडिकल एसोसिएशन का जो जर्नल है, उसमें जो भी शोध पत्र, जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे, उसका आप स्तर समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल जो दिया था एक हदीथ का, आई हैव टेकन फ्रॉम हदीथ that was written in 1991 by Sahih al-Bukhari। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी। एक और बात, concept of body layers, new generation should have the concept of body layers। मेरी बात से आप सहमत हो कि इस एज में, आपकी एज में, we spend most of the time to glorify our physical body। लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें, महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, चाहे जिम जाए, दुनिया भर के ताम झाम है, एनर्जी ड्रिंक्स हम लेते हैं,
प्रोटीन्स हम लेते हैं, जिम विजिट करते हैं to glorify our physical body only, but we should think about the remaining layers also. As per yoga, there are 3 layers of the body. First one is the physical body. What do you mean by physical body? हम सब जानते हैं. What takes place? Development takes place. You are in a developing stage. Stagnation state takes place. स्थिरता, I am in a stagnation state. Deterioration takes place. You know what? Last में death takes place. तो हम इस बॉडी को, फिजिकल बॉडी को ग्लोरीफाई करने में हमारा, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, समय है ना 5 मिनट। एक छोटा बच्चा था, समुद्र के किनारे अपने पिता की उंगली पकड़कर घूम रहा था। पिता ने कहा कि भाई, गुब्बारे बेचने वाला था, गुब्बारे खरीदने के लिए आग्रह किया, बेटा गुब्बारा चाहिए। तो उसने देखा कि सारे रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने वाले ने समुद्र के तट पर खरीद लिए, काले रंग का गुब्बारा किसी ने खरीदा। The child was very curious, बड़ा जिज्ञासु था बच्चा। पिता से क्वेश्चन किया, पिताजी ये काले रंग का गुब्बारा उड़ता नहीं होगा, शायद इसलिए नहीं खरीदा। हाइपोथेसिस थी उसकी। पिता ने उंगली पकड़ी, काले रंग का गुब्बारा खरीदा, बच्चे की उंगली हाथ में दिया, कहा छोड़ दो, गुब्बारा उड़ गया। द चाइल्ड लर्नड ए न्यू लेसन कि इस गुब्बारे को उड़ाने में इसकी बाहरी परत का कोई योगदान नहीं है। व्हाट इज इनसाइड दिस, इसके अंदर है उसका योगदान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी प्रगति में आप इसका विश्वास करेंगे, आज नहीं तो कल, आगे का अपने जीवन में, कि हम सबकी प्रगति में इस बाहरी लेयर का ना के बराबर योगदान है। What is inside this? That is responsible for our development. तो inside क्या है? These are known as remaining 2 layers. One is astral body that is connected to the physical body with a subtle thread. This is in kata that departs, and this has 3 sub-layers: pranic kshath, mental kshath, and intellectual kshath. Pranic kshath that control our sensory organs, heat, cold, hunger, thirst, सर्दी गर्मी, भूख प्यास की अनुभूति करवाता है। मेंटल kshath जिसकी आवश्यकता है मजबूत करने की, तनाव मुक्त करने के लिए। Our mental kshath, by the help of the mental kshath we experience, our thought depends on कि किस प्रकार के विचार उठेंगे, डाउट, शंका, एक्सलरेशन, हर्षोल्लास, डिप्रेशन, अवसाद या डिल्यूजन, भ्रम में हमें डालने वाली ये मेंटल kshath है। तो we have to strengthen this our mental kshath by practicing different yogic practices, maybe meditation, maybe respiratory practices, and next one is intellectual kshath. This control and guide our mind. Our mind works under the guidance of our intellectual kshath. जिसको हम कहते हैं विज्ञान में कोश, and what is right, what is wrong, that is decided by our intellectual kshath. And decision making, अच्छा निर्णय, intellectual kshath जब तक मजबूत नहीं होगी, कोई व्यक्ति विशेष अच्छा निर्णय ले ही नहीं पाता। But our ego resides in this. बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, विदुषियां जो ज्ञान से परिपूर्ण थे, उनमें अधिक ईगो देखने को मिलेगा। Exceptions are always there. अब्दुल कलाम जी का एक अपवाद था, लेकिन आप देखिएगा। And next is the causal body. Causal body is the seed body. It means that is a blueprint of plant. जैसा बोया वैसा काटना है। Our karma, जो कर्म किए, these are stored in the depth of our unconscious mind. जो हम कर्म करते हैं अचेतन मन की गहराई में, वो संग्रहित है चित्त में, एंटायरिटी ऑफ माइंड की में, और वो जैसा है वैसा उसका रिजल्ट हमें मिलना है, परिणाम मिलना है। These control the formation of and growth of other 2 bodies. By other 2 bodies I mean astral body and physical body. And stress and performance. See this graph? Stress नहीं होगा, अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा। यहाँ स्ट्रेस को प्रदर्शित किया गया प्रेशर से। लो प्रेशर होगा, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। देखिए रेड जोन को। मॉडरेट प्रेशर होगा, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और यानी लो लेवल ऑफ स्ट्रेस भी अच्छा नहीं है, वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस भी अच्छा नहीं है। इन all individuals, optimal level of stress is required for optimal performance. नहीं, किसी भी व्यक्ति विशेष का किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। तो common questions regarding stress: how can I eliminate stress from my life? कि मैं अपने जीवन से तनाव को कैसे दूर कर दूं। ब्रह्मा जी भी मनुष्य के रूप में जन्म ले, वो भी दूर नहीं कर सकते, इस ब्रह्मांड में आ गए। यानी we cannot eliminate stress. Yes, we can manage this. We have to develop
द टेक्निक्स टू मैनेज, कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, इसका सामना कैसे करें। दूसरा, हाउ कैन आई टेल व्हाट इज ऑप्टिमल स्ट्रेस फॉर मी, कि मेरा ऑप्टिमल कितना है। साइकोलॉजी में एक टर्म है, देयर इज अ टर्म इन द साइकोलॉजी, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। मेरा ऑप्टिमल स्ट्रेस अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हर व्यक्ति विशेष का ऑप्टिमल लेवल जैसा नहीं हो सकता। अब सजेस्टेड प्रैक्टिसेस, दिस इज द लास्ट पार्ट। बैठे बैठे क्योंकि इस प्रकार के हम अभ्यास कर सकते हैं। सिंपल है, कपोल शक्ति विकास है। कपोल इज अ संस्कृत वर्ड, कपोल मीन चीक्स, कपोल शक्ति विकासक। लेकिन कपोल शक्ति विकासक का अर्थ ये ना केवल कपोलों की शक्ति को विकसित करे, दिस स्ट्रेंथन आवर लंग्स आल्सो। और इस कोविड-19 पेंडेमिक में, विश्वव्यापी महामारी कोविड में बड़ा इसका बड़े बड़े योगियों ने इसको सुझाया। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। वी हैव टू प्लेस आवर फिंगर्स टुगेदर, हमें अपने फिंगर्स को एक साथ रखना है। और बाय द हेल्प ऑफ thumbs we have to control the nostril, we have to make our mouth in a oval shape and we inhale through this, और हम इसे inhale करते हैं। we tuck the chin, chin को tuck करते हैं, maintain the position in the beginning, शुरू में we can maintain up to 20-30 seconds, लेकिन इस अभ्यास को आप करेंगे और लंबा कर सकते हैं। you can maintain up to 1 minute 2 minutes, that will depend on your capacity। धीरे धीरे, ये कपोल शक्ति विकासक। अगला है, और दूसरे की बात करें, दैट इज भ्रू मध्य दृष्टि। दिस प्रैक्टिस, भ्रू मींस दैट इज आल्सो संस्कृत वर्ड, भ्रू मींस आवर आईब्रोज, भ्रू मध्य, मध्य मींस इन बिटवीन, भ्रू मध्य दृष्टि, दृष्टि मींस विजन। वी हैव टू प्लेस, we have to keep our both the eyeballs in between our eyebrows and we sit in a comfortable position, that is known as भ्रू मध्य दृष्टि। आप, you all are NIT students or scholars or faculty members, चेयर पर बैठकर कपोल शक्ति विकास के भी 2 रिपीटिशंस कभी भी लगा सकते हैं, 2-4 रिपीटिशन। भ्रू मध्य दृष्टि जब भी समय मिले, we can concentrate by using this simple, we have to keep our eyeballs in between the eyebrows। These are the simplest type of practices, we can practice in any posture। आप देखिएगा इसके इफेक्ट। अगला है नसाग्र दृष्टि। नसाग्र is also a Sanskrit word, nose dip, we have to keep our eyeballs on our nose tip। सिंपल, वहां पर हमने रखा था in between our eyebrows, और यहाँ कहाँ रखना है, on nose tip, that is known as nasagra dृष्टि। नेक्स्ट वन इज अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिंपल है, हम सब करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम योग के क्षेत्र की ऐसी रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस है जिसके दोनों प्रभाव हैं। दिस हैज बोथ द टाइप ऑफ इफेक्ट्स, स्पॉन्टेनियस, आप एग्जाम में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, कहीं आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं आपका प्रेजेंटेशन है, आप रखिए, आपकी मेंटल स्टेट बदलेगी। We inhale through left, exhale through right, again inhale through right, and we exhale through left nostril। This is one repetition of Anulom Vilom, and simplest type of practice about this I had explained earlier on, progressive relaxation, muscle relaxation। We contract and we concentrate on that, we relax the muscles, concentrate on that, and we try to differentiate between the contraction and relaxation। And simplest type of meditation, that is the initial stage, pran dharana। प्राण धारणा, प्राण को धारण करना मीन्स we concentrate by sitting in a comfortable position, we concentrate on our breath। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्राण धारणा। नेक्स्ट इज मेडिटेशन। there are different types of meditations, concentrative meditation, mindfulness meditation, दुनिया भर के meditations है। सहयोग meditation, it is very easy to practice, and by the help of Sahaja meditation, you can activate your Kundalini, you can activate your spiritual power। The concept was given by Shri Mataji Nirmala Devi in the year 1970 and has been spread all around the world। Next one is music। अच्छा, जो भी आपको रास आए म्यूजिक सुनिए। टाइम मैनेजमेंट भी अति आवश्यक है। तो ये सब कहानी थी, तो एक टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, आज के दिन बहुत जरूरी है। And organize and write down the realistic goals। ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करें कि जिनको आप पा सके। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं 10 साल बाद चांद पर चला जाऊंगा, संभव नहीं है ना। ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करें जिनको अर्जित किया जा सकता है। डेवलप ए टाइम फ्रेमवर्क, एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज फॉर टाइम। हम सबके पास एक साथ एक काम नहीं रहता, सबको समान प्रायोरिटी देंगे, संभव नहीं है। We have to decide in a
Descending order, ask for help if responsibilities become overwhelming. देखिए, we should not hesitate to ask for help. किसी दूसरे से सहयोग मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है. Take a break, कंटिन्यूटी को ब्रेक कीजिए, किसी रूप में कीजिए, और नो वेयर एंड व्हेन यू कैन बेस्ट कंप्लीट द टास्क. हर कार्य, हर समय, हर परिस्थिति में एक जैसा संपन्न नहीं किया जा सकता. हम अपने ज्ञान और विवेक से हम सोचें कि इस काम को किस समय और किस अवस्था में पूरा किया जा सकता है. तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये बात की हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की, योगी प्रैक्टिसेस की, तो कुल मिलाकर हमें we have to activate spiritual power. हमें उस आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना है, जो कि आज का एक युवा, आज के since you believe in a scientific approach, लेकिन एक philosophy भी होती है. What do you mean by philosophy? Philosophy क्या है? एक बात और करें, philosophy की बात इसलिए आ रही, जहां विज्ञान उत्तर नहीं देता वहां philosophy उत्तर देती है, तो मानते हैं. What do you mean by philosophy? ये शर्ट कैसी पहन रखी है, कैसी लग रही है, टी शर्ट कैसी लग रही है, आपको कैसी लगी? अच्छी है. ये बच्ची कह रही है कौन झूठ बोल रही है, अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है. वो पीछे वाला कह रहा है दोनों झूठे, ना अच्छी है ना बहुत अच्छी, तो बहुत ही बहुत अच्छी है. और मैं कहता हूँ कि तीनों का उत्तर ठीक नहीं, ना ये अच्छी है, ना बहुत अच्छी है, ना बहुत बहुत अच्छी है. अल्टीमेट है. अल्टीमेट है मींस दैट इज लास्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट. इस ब्रह्मांड में इससे अच्छी टी शर्ट बनी नहीं. दैट इज नोन एज अल्टीमेट. इज इट क्लियर? किसकी बात कर रहे थे? फिलॉसफी की. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टीमेट विजन इज नोन एज फिलॉसफी. ऐसा दृष्टिकोण स्थापित कर देना आज के दिन, वो अल्टीमेट, दैट इज लास्ट, जिसको हर व्यक्ति फॉलो करता है, दैट इज नोन एज फिलॉसफी. तो हमें केवल विज्ञान पर आधारित नहीं, कुछ फिलोसफिकल बातों पर भी विश्वास करना चाहिए. मीन्स अल्टीमेट विजन पर, ऐसे दृष्टिकोण पर जो कि अल्टीमेट है. तो मेरा पहला लेक्चर, आई विल बी विद यू फॉर वन मोर लेक्चर. एक लेक्चर और मेरा आप सबके समक्ष रहेगा, और वो थोड़ा एंटायरली डिफरेंट होगा. कहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है और कहाँ डेटा एनालिसिस की बात है. तो डेटा एनालिसिस की बात करेंगे. फॉर द लास्ट मिनट योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड. आपके प्रश्न आमंत्रित है, एज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्वेश्चंस. थैंक यू. किसी के कोई क्वेश्चन पूछिए. तो शुरू कर, तो जरा शुरू कर दे. तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि या तो आप सब कुछ जान गए हैं या बिल्कुल ही कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया. ठीक है, ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? थोड़ा सा हटके बात करते हैं. मेरी बात को निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर और सुन सकते हो? For how much time you can hear continuously? दो शब्द ध्यान दीजिए, continuously and attentively. बोलो. आधा घंटा. ब्रह्मा जी भी मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर उतर आए तो आधा घंटा निरंतर जागरूकता के साथ नहीं सुन सकते. कोई एज पर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च की बात कर रहे हैं, अनुसंधान की बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष निरंतर जागरूकता के साथ 14-15 मिनट ही सुन सकता है. और उसके बाद जो ग्रहणशीलता है, ग्रास्पिंग एबिलिटी, दैट रिड्यूसेस 99, 98, 97, और एक ऐसा समय भी आता है कि 0% ग्रहणशीलता होगी. दैट इज नोन एज द रिजेक्टिंग टाइम. और सबका रिजेक्टिंग टाइम अलग अलग है. तो आप में से कुछ रिजेक्टिंग टाइम में प्रवेश कर चुके हैं. और जो रिजेक्टिंग टाइम में प्रवेश कर चुके हैं, बड़ा मुश्किल है उस समय बोलना. लेकिन करते हैं बात, डेटा एनालिसिस काम की बात है. आप में से पीएचडी स्कॉलर्स कितने हैं? पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, या जो पीएचडी करने का एक मन बना रहे हैं, उनके लिए बहुत काम की बात होगी. आई विल प्रूव विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स. एक परिकल्पना को उदाहरणों के साथ में प्रस्तुत करूंगा. बहुत अच्छी बात है. थोड़ा आशा करता हूं कि कोऑपरेट करेंगे. तो मुझे अकेले को पिला रहे हो, सबको नहीं पिला रहे हैं? हाँ, सबको पिलाओ भाई. अच्छा नहीं लगता मैं अकेला दूंगा इसको.
तो केवल 2 मिनट के ब्रेक के बाद आप सुनिए, साथ साथ इसको लीजिए और शुरू करते हैं। We will discuss about data analysis. अगले भाग में हम डेटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस कोई भी नहीं है? बताइए। जब तक एक और बात कर लेते हैं डेटा एनालिसिस से पहले, थोड़ा सा टू डिले द रिजेक्टिंग टाइम, रिजेक्टिंग टाइम को डिले कर दें। हमने सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं की ना, सोशल डेवलपमेंट की बात की है, इतनी बात हुई सोशल डेवलपमेंट चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डेवलपमेंट? 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। दो व्यक्ति बहुत अधिक बोलते हैं, ये दोनों बच्चियां बहुत अधिक बोलती हैं, क्या इनकी दोस्ती हो सकती है? आया ना? हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ये दो बच्ची ऐसी हैं कि जो बिल्कुल नहीं बोलती हैं, बोलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो दोस्ती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। और एक बहुत अधिक बोलता है, एक बहुत कम बोलता है, दोस्ती हो सकती है? भाई आपके फिजिक्स का प्रिंसिपल ना, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम इज एप्लीकेबल इन द सोसाइटी। अपोजिट पोल्स अट्रैक्टिंग। भाई शादी होती है तो कुंडली मिलवाते हैं ना, कुछ नहीं, अपोजिट पोल्स तो मिलवाते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट पोल्स? ये अपोजिट पोल्स है क्या? अपोजिट पोल्स इज आवर फंडामेंटल बिहेवियर। बहुत काम की बात है, डेटा एनालिसिस तो खूब सीखते रहोगे। व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट पोल्स? दिस इज फंडामेंटल बिहेवियर, मूलभूत व्यवहार। तो मूलभूत व्यवहार में मान के चलो 3 चीजें हैं, इंक्लूजन, कंट्रोल, अफेक्शन। क्योंकि एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस, जब तक कि मूलभूत व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, तनाव मुक्त अपने आप को कोई कर ही नहीं सकता। तो कितने ट्रेट है फंडामेंटल बिहेवियर में? 3। कौन? इंक्लूजन, हिंदी में समावेश, कंट्रोल, नियंत्रण, और तीसरा है अफेक्शन, स्नेह। हर व्यक्ति स्नेह चाहता है, लेना देना। और तीनों ही 2 रूपों में, एक्सप्रेस्ड एंड वांटेड, अभिव्यक्त किया गया और अपेक्षित। एक्सप्रेस्ड और वांटेड तो 6 हो गए। एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, अभिव्यक्त किया गया समावेश, वांटेड इंक्लूजन, दूसरे से अपेक्षित समावेश, एक्सप्रेस कंट्रोल, वांटेड कंट्रोल, एक्सप्रेस अफेक्शन एंड वांटेड अफेक्शन। संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है? एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन। एक्सप्रेस इंक्लूजन की बात करते हैं। एक परिकल्पनापूर्ण परिस, अब इनका दुर्भाग्य सामने बैठ गए। ये है किस क्लास में? एमटेक फर्स्ट ईयर में। कॉमन रूम में बैठे, दोस्त बगल में है, चाय पीने जा रहा है। पूछा कहाँ जा रहा है? बस बस यहीं जा रहा हूँ, चुपचाप गया। परिंदे को भी खबर नहीं मिली, कैंटीन में आईसीएच में जाकर कॉफी लेकर वापस आकर बैठ गया। एक्सप्रेस, अभिव्यक्त किया गया समावेश 0%। इज इट ओके? वहीं दूसरी स्थिति में इनको आईसीएच जाना है, कॉफी पीने, पूरा एनआईटी जान गया कि चलो चलो चलो, शोर मचा डाला। तो एक्सप्रेस इंक्लूजन कितना हो गया? 100%। ये साथी है। अगर इनका वांटेड इंक्लूजन 0% होगा, इनको पता है कि झूठ बोला, पहली स्थिति बिना बताए गए थे, झूठ बोल कर गए थे, तो भी अच्छे लगेंगे, काम से काम रखता है। अगर इनका वांटेड 100% होगा तो कहेंगे झूठा व्यक्ति, चकमा देता है, बताकर भी नहीं गया, ऐसे विचार उत्पन्न होंगे ना। अगर दूसरी स्थिति क्या थी? सबको बता कर गए। दूसरी परिस्थिति में एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन कितना था? 100। अगर इनका वांटेड 0 होगा तो किस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे मस्तिष्क में? अरे कुछ ना कुछ काम होगा नहीं, ये किसको चाय पिला सकता है, जहर ना दे दे मुझे। किस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे? यानी वही व्यवहार, वही एक्सप्रेस इंक्लूजन, वही अभिव्यक्त किया गया समावेश मे बी एक्सेप्टेबल फॉर समवन, मे नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर समवन। तो कुल मिलाकर we have to adjust our wanted inclusion as per the expressed inclusion of another individual. जो सफल हो जाता है उसकी सबसे अच्छी दोस्ती है, और जो सफल नहीं होता उसकी कम ही लोगों से बनती है। कहानी तो लंबी। दूसरा क्या था? कंट्रोल, नियंत्रण। हर व्यक्ति कंट्रोल दूसरे पर चाहता है, अपेक्षा करता है ना, अपेक्षित भी है और अभिव्यक्त किया गया। He became an assistant professor in university. Teaching is going on. कंट्रोल की बात कर रहे हैं, सामने विद्यार्थी बैठे हैं,
कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि मोबाइल पर लगे, यहाँ तक कि पिछली बेंच पर कोई लेट भी गए, सो भी गए, लेकिन ये मस्त है लेक्चर देने में। इनका एक्सप्रेस कंट्रोल कितना हुआ? 0। दूसरी तरफ बच्चे ने बेचारे इधर देख लिया, व्हाई यू आर लुकिंग बाय द साइड, क्यों देख रहा, सीधा बैठ, सिट हियर, कैसा कंट्रोल रहा? अगर किसी बच्चे का वांटेड कंट्रोल 100% होगा तो टीचर की डांट भी अच्छी लगेगी, और जिसकी वांटेड कंट्रोल 0% हो गया, डांट मेरी कहीं भी बेइज्जती कर देता। तो वी हैव टू एडजस्ट आवर वांटेड कंट्रोल एज पर द एक्सप्रेस कंट्रोल ऑफ अनदर इंडिविजुअल। तीसरा क्या है? अफेक्शन, स्नेह। हर व्यक्ति स्नेह प्रकट करता है, लेता भी है, देता है, लेकिन तरीका अलग है। शादी फिक्स होगी, शादी फिक्स होगी। झरिया जी का स्टूडेंट झरिया जी को इनविटेशन देने गया, पहला फर्स्ट वे, सर माय मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, यू आर रेस्पेक्टेबल टू मी, आइएगा, आपके बिना शादी नहीं होगी। मींस एक्सप्रेस अफेक्शन कितना? 0%। सेकंड वे इज, सर माय मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, सिंस यू आर रेस्पेक्टेड फॉर मी, सर प्लीज कम टू माय मैरिज टू ब्लेस मी। एक्सप्रेस कैसा हो गया? 100%। अगर झरिया जी का वांटेड होगा 0, तो दूसरा तरीका, पहला तरीका अच्छा लगेगा कि हक से कह रहा है। अगर वांटेड होगा 100, तो कहेंगे इन्विटेशन दे रहा है, मुझे डांट रहा है। यानी सेम बिहेवियर में बी गुड फॉर समवन, मे नॉट गुड। तो सोशल डेवलपमेंट यही है, एक लाइन में, यू हैव टू एडजस्ट योर वांटेड इंक्लूजन, वांटेड कंट्रोल, वांटेड अफेक्शन एज पर द एक्सप्रेस इंक्लूजन, एक्सप्रेस कंट्रोल एंड एक्सप्रेस अफेक्शन ऑफ अनदर इंडिविजुअल। टाइम वेस्ट हो रहा है, तो शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस की कहानी। डेटा एनालिसिस, नए नए क्षेत्र में उतरते हैं। डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण। सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस, शुरू करें ना, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस, वी अप्लाई डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज डेटा। चाहे अर्थ साइंसेस की बात करें, चाहे मेडिकल साइंसेस की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, इफ यू वांट टू डू क्वांटिटेटिव रिसर्च, यदि हम मात्रात्मक अनुसंधान करना चाहते हैं, वी हैव टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज डेटा। एग्री? पर एक पहले एक रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के क्षेत्र की बात करने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फील्ड ऑफ रिसर्च। वन कोट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू that tells us about the significance of research. That is, anything without research is like shooting an arrow into the air, then looking for the target to catch it with. किसी भी क्षेत्र में किया गया कार्य बिना अनुसंधान या शोध के ऐसा है कि पहले तीर कमान से तीर छोड़ दें, फिर उस तीर से ढूंढें इसको कहां भेजें। व्यंग्यात्मक उदाहरण है लेकिन सही है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। पिछली बार की तरह उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया था। I divide this whole presentation to 2 parts, concept of variables. Since we do research by taking different variables, आप भी तो different variables लेते हैं ना, variables को समझ लेते हैं पहले कि variable is a characteristic that has a tendency to change with respect to time, place, individual. Variable वो विशेषता है जो समय अनुसार बदलती हो, स्थान अनुसार बदलती हो और व्यक्ति अनुसार बदलती हो, परिवर्तनशील हो। वेरिएबल इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंसेज आल्सो, अर्थ साइंसेज के क्षेत्र में भी यू कंडक्ट योर रिसर्चेस बाय टेकिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। अर्थ साइंस का एग्जांपल छोड़ते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइकोलॉजिकल एग्जांपल। एंजाइटी, ये वेरिएबल है या नहीं है ना? समय अनुसार बदलेगी, सुबह एंजाइटी लेवल अलग था, दोपहर में अलग होगा, सर्दियों में अलग होगा, बरसात में। व्यक्ति अनुसार बदलेगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, वो आपका अलग होगा। स्थान अनुसार बदलेगा, आप रायपुर में अलग है, बिलासपुर चले जाएंगे अलग है। जो व्यक्ति, स्थान और समय अनुसार, सिंपल वर्ड्स में, लेमैन्स लैंग्वेज, क्वालिटी ऑफ सॉइल वेरिएबल है ना भाई, सॉइल की क्वालिटी। तो कोई किसी ना किसी वेरिएबल को लेकर वी कंडक्ट स्टडीज, रिसर्च स्टडीज इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंसेस बाय टेकिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। तो अभी तक हमने बात की कि वेरिएबल का अर्थ की वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल। तो किसी वेरिएबल को लेकर हम आगे चलते हैं।
लेकिन क्योंकि हम आंकड़ों के विश्लेषण के लिए विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों के बारे में बात करेंगे, we will discuss about the application of different statistical tools to analyze data. For that, we should have an idea about the classification of variables. तो types of variables की बात करते हैं, क्योंकि hypothetical examples भी frame करेंगे सब types of variables. हम types of variables means classification of variables. Agree? क्या हम इस ग्रुप को क्लासिफाई कर सकते हैं? कर दीजिए. एमटेक एंड बीटेक, ये एमटेक और पीएचडी क्यों किया भाई? ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन डिग्री. क्या यही हो सकता है? मेल्स फीमेल्स, इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर पॉसिबल. किसी भी क्षेत्र में जब वर्गीकरण की बात होगी तो अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे. डिफरेंट ऑथर्स क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज, क्योंकि उन्होंने वर्गीकरण का आधार विभिन्न लिया. तो यहाँ पर हम जो वर्गीकरण की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस, केवल दो ही बात करेंगे. सबकी सब संभावना संभव नहीं है सबकी चर्चा किया जाना. पहला ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल मॉडल. कॉजल मॉडल क्योंकि बहुत एक काम की बात है. इफ यू हैव एन इंटरेस्ट टू डू पीएचडी और हायर स्टडीज, टू डू रिसर्च और वांट टू पब्लिश पेपर्स इन रेप्यूटेड जर्नल्स, यदि अच्छे शोध पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं, उस दशा में एक काम की बात है causal model that has a cause and effect relationship. causal model के आधार पर हम तीन वेरिएबल्स को तीन श्रेणियों में बांटते. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस एक ट्रीटमेंट, एक हाइपोथेटिकल टाइटल बनाते हैं. इफेक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न. संभव है क्या? आया ना? यानी कि जमीन की गुणवत्ता का फसल के उत्पादन पर प्रभाव, ये आर्टिकल ये रिसर्च संभव है या ना? है ना? इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल की इफेक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल, तो क्वालिटी ऑफ सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका प्रभाव हम देखते हैं. सामान्य सी बात है, क्योंकि बाद में जितने टेक्निक्स की बात करेंगे वो आएगा. सेकंड वन इज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. हम किस पर प्रभाव देख रहे हैं? फसल के उत्पादन पर. किसका देख रहे हैं? हमारा आवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ओनली द क्वालिटी ऑफ सॉइल, जो कभी होता नहीं. उसके अतिरिक्त दुनिया भर के तामझाम अपना प्रभाव छोड़ते हैं. ह्यूमिडिटी है, एनवायरमेंट है, रेन है. क्या अकेला क्वालिटी ऑफ सॉइल ही छोड़ता है क्या? नहीं. लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या, किसका प्रभाव ज्ञात करना? सॉइल का, क्वालिटी ऑफ सॉइल का. लेकिन उसके अतिरिक्त कोई अपना प्रभाव छोड़ते हैं, दैट इज नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. इज इट ओके? लेकिन कंफाउंडिंग वेरिएबल भी दो तरह के. वन इज इंटरवेनिंग वेरिएबल्स. Intervening variables, these are beyond the control of investigator. क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज कर सकते हो, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो. These are considered as intervening variables. And second one is extraneous variables. Extraneous variable means to a great extent you can control. काफी हद तक आप नियंत्रित कर सकते हो. आपके क्षेत्र में क्या हो सकता है? फर्टिलाइजर नियंत्रित कर सकते हो ना. इज इट ओके? लेकिन आपका इंटरेस्ट किस पर प्रभाव ज्ञात करना है? फसल के उत्पादन पर. किसके कारण? सॉइल की क्वालिटी के कारण. लेकिन सॉइल की क्वालिटी के अतिरिक्त जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, दीज आर नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. और कंफाउंडिंग कितने प्रकार के? दो. बियॉन्ड कंट्रोल एंड विद इन योर कंट्रोल. एंड थर्ड वन इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर. इन दिस हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ, फसल का उत्पादन. यही हुआ ना. दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स. आपके क्षेत्र में बहुत उपयोगी. यूनिट ऑफ मेजरमेंट के आधार पर हम किन किन भागों में विभाजित करते हैं. फर्स्ट वन इज द नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल, व्हेन वी कलेक्ट डेटा इन ए फ्रीक्वेंसी और काउंट्स.
इन ए डिस्क्रीट सीरीज मैं पूछूं नंबर ऑफ मेल्स इन दिस ग्रुप, आप क्या कहेंगे? 20.2 हो सकता है क्या कि 20.2 विद्यार्थी उपस्थित हैं? दैट विल बी होल नंबर. Number of agree, number of disagree, number of plants, that is a number of plant is a variable in a nominal scale. Can we measure in a nominal scale? और आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे हैं कि नॉमिनल स्केल भी हो सकता है, डाइकोटोमस हो सकता है. डाइको मींस टू, हैविंग टू एंड्स. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, स्मोकिंग का मेजरमेंट होगा यस और नो, दो ही तो होगा. पॉलीटोमिस कैटेगरिकल, यू डिवाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. प्लांट विद लॉन्ग हाइट, मीडियम हाइट और शॉर्ट हाइट हो सकता है ना. कि कास्ट, रेस, चाइनीज, इंडियंस, ये एग्जांपल किसका? पॉलीटोमिस का. नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल स्केल. व्हेन वी कैन नॉट मेजर इन अ न्यूमेरिक वे, आपके क्षेत्र में तो दुनिया भर के वेरिएबल्स हैं, वी हैव टू मेजर इन ऑर्डर, मे बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मे बी लाइक असेंडिंग ऑर्डर. या तो इस असेंडिंग ऑर्डर में होगा या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. कैसे? वेट नहीं करना चाहते जिम में? कभी एक्सरसाइज वगैरह करते हो? एक्सरसाइज करते हो ना? थोड़ी जिम वगैरह में गए हो कभी? थोड़ा गए, गए थे बीच में, कई दिनों का गैप कर दिया, गए, कमर में लग गया जर्क, बेंच प्रेस कर रहे थे. कहाँ पहुंचे? डॉक्टर के पास. बाहर नहीं पहुंचे डॉक्टर के पास सीधा, बाहर कुछ नहीं होना. डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने पूछा बेटा व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ पेन, दर्द कितना? आपने कहेंगे सर मुझे 2 क्विंटल पेन है. यू विल एक्सप्रेस इन ऑर्डर, सर आई हाई पेन, I have medium pain, I have low pain. You have to express in order by the help of percentiles, quartiles, deciles. Is it okay? Maybe in ascending order, maybe in descending order. मैं पूछूंगी इनकी ब्यूटी कितनी है, कितना सुंदर है भाई. आप कहोगे 4 सेंटीमीटर ब्यूटी है. You will say, yeah, he has excellent beauty. Beauty and severity of pain, these are the basic concept of statistical tools.
We, in the process of research, we follow different steps. We identify the problem. We formulate objectives. We formulate hypothesis. We collect data. हम आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं ना. कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ डेटा. डेटा को एनालाइज करेंगे टू ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड वी अप्लाई स्टैटिस्टिकल टूल्स. लेकिन there are some limitations of statistics. It is not possible to discuss about all the limitations of statistics in the limited duration of time. लेकिन उनमें से दो ध्यान में रखें. First one is statistical laws are not exact. सांख्यिकी के नियम exact नहीं है. आंकड़ों के विश्लेषण के बाद जो हमें उत्तर मिलता है that is a probable answer. संभावित उत्तर है, 100% सटीकता नहीं है. उसी कारणवश there is a concept of level of significance. Level of significance तो जानते होंगे कि you conduct your studies, I think, on the 0.0 level of significance in sciences. It means you are 99% confident and your significance level is 1%. And second one is statistics is liable to be misused. सांख्यिकी का दुरुपयोग होता है. और किसी भी क्षेत्र का दुरुपयोग किस तरह से कर सकते हैं? We can do in two different ways, intentionally or unintentionally. Intentionally कैसे? Before joining, for the last 10 years I am in Pandit Ravishankar Shukla University. Before that I was in BHU for 5 years. बड़ा विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय. उसमें रोज ही पता नहीं कितनी PhD जमा होती है. 30,000 स्टूडेंट्स लगभग उसमें एनरोल्ड है कैंपस में. तो गेट के सामने एक लाइन में कंप्यूटर के शॉप्स हैं. वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थीसिस टाइप करते करते प्रगाढ़ विद्वान ज्ञाता हो चुके हैं, स्कॉलर से भी ज्यादा, क्योंकि रोज थीसिस टाइप करते हैं. स्कॉलर गया, एनालाइज करवाना है, पेड एनालिसिस भी तो करते हैं टाइपिंग के साथ साथ. तो आप सीरियल देखते हैं, सीरियल टीवी पे एक नीचे लाइन लिखी रहती है कि इसके सारे पात्र काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं. रिकॉर्डिंग हो रही तो मेरे पात्र उत्तर सारे काल्पनिक है. ठीक है, बातें काल्पनिक है. ठीक, तो वो एक्सपर्ट पूछता है कि भाई कैसा रिजल्ट लाना है. इट मींस ही नोज कि कहां से डेटा को मैनिपुलेट करूंगा तो कैसा उत्तर आएगा. तो ये इंटेंशनली मिसयूज किया स्टैटिस्टिक्स का. लेकिन आमतौर पर हम क्यों करेंगे? लेकिन अनइंटेंशनली मिसयूज करते हैं. आमतौर पर हमें नहीं पता वो कहना कुछ चाह रहा है आंकड़ों का विश्लेषण, और हम उसको समझ कुछ रहे हैं. ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं कैसे. He is MTech student. After passing MTech, he registered himself as a PhD scholar. मैं देखता हूँ आजकल जो PhD स्कॉलर PhD करने लगता है तो बड़ा प्रफुल्लित रहता है कि I am doing higher education, higher studies. बड़े प्रफुल्लित. घर वाले भी खुश हो गए. घर वालों ने बाइक खरीद के दी. नहीं, वो भी अलग तरह की जो आती है. रूम पार्टनर थे दोनों, इनका भी एडमिशन था. सारी शैलियां बदल डाली तो बाइक चलाने का तरीका बदल डाला. बाइक चलाने के तरीके में क्या था? इनको पीछे बैठा कर ले जा रहे थे और जहां पर खाली रोड था, कुछ भी नहीं था, गांव में कहीं घूमने गए थे, धीरे धीरे रेंगते कछुए की तरह चला रहे थे. बोले भाई तेज चलाओ ना. नो, आई एम ड्राइविंग ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स. और चौराहे जो थे वहां साए से बस और उसके नीचे से निकाल रहे थे. हार्ट रेट बढ़ गई पीछे. आज तो बैठ गया, आज के बाद नहीं बैठूंगा, आज तो मरता मरता बचा. वो थ्री डेस्टिनेशन, दोनों ही अपने गंतव्य पर NIT में अपने में पहुंचे. पसीने आए हुए थे, हार्ट रेट बढ़ी हुई थी, और बोले भाई आज तो मैं तेरे पीछे बैठ गया, आज के बाद मैं तेरे पीछे नहीं बैठूंगा. बट टेल मी हाउ यू आर ड्राइविंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च. उत्तर था I have gone through the survey studies for the last 2 years. पिछले 2 साल से सर्वेक्षण अध्ययन पढ़ रहा हूँ. 99.99% एक्सीडेंट्स चौराहों पर भीड़ भाड़ में होते हैं. खाली मैदान में जहाँ लोग नहीं रहते वहाँ एक्सीडेंट्स नहीं होते. जहाँ नहीं होते हैं वहां समय बिताता हूँ, और जहाँ होते हैं तुरंत निकल लेता हूँ. अगर इस शैली में मोटरसाइकिल चलाई जाएगी तो स्टैटिस्टिक्स तो यही कहेगी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स विल बी मिनिमाइज्ड. भाई स्टैटिस्टिक्स तो ये कहेगी जहां अधिक समय बिताओगे वहां प्रोबेबिलिटी अधिक होगी.
तो क्या वास्तव में ऐसा व्यवहारिकता में संभव है क्या? तो इस तरह हम मिसयूज करते हैं, लेकिन दोबारा लौटते हैं। इस जोक का अर्थ केवल इतना ही था, टू डिले योर रिजेक्टिंग टाइम, कि आपके रिजेक्टिंग टाइम में कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, उनको डिले करना। अब आगे चलते हैं। हमें आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, टू एनालाइज डेटा वी रिक्वायर टेक्निक्स, and these statistical techniques are known as inferential statistics, अनुमानिक सांख्यिकी, since these are used to draw inferences. And all the statistical techniques are divided into two parts, parametric and non-parametric. अब साइंसेज में भी जितने भी रिसर्च पेपर्स देखिए, आमतौर पर ब्लाइंडली वी अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, हम आमतौर पर सीधे तौर पर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? There are some assumptions which should be fulfilled before applying parametric statistics. Parametric statistics की श्रेणी में जितनी भी टेक्निक है जिनकी चर्चा करेंगे, उनको लगाने के लिए कुछ मान्यताओं की पूर्ति होनी चाहिए। If these assumptions are not fulfilled, we cannot apply parametric. We have to apply parallel non-parametric technique. Then the question arises, what are these assumptions? Assumptions are the data should be normally distributed. यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पैरामेट्रिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक नहीं करते, तो फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, पहला चरण अनुसंधानकर्ता का क्या होना चाहिए? टेस्टिंग नॉर्मलिटी, आंकड़ों की नॉर्मलिटी को चेक करना। क्यों? वी हैव टू डिसाइड वेदर वी हैव टू अप्लाई पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। दूसरी assumption है, we can apply parametric statistics only in interval और ratio scale. केवल interval और ratio scale में लगा सकते हैं। स्केल ऑफ मेजरमेंट कितने थे टोटल? 4, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। इनमें से केवल इंटरवल और रेशियो स्केल में, इसका अर्थ पहले दो में नहीं लगा सकते। पहले दो क्या थे? नॉमिनल और ऑर्डिनल, नहीं लगा सकते। On the other hand, non-parametric statistics can be applied in any distribution as well as in any scale of measurement. Nominal, ordinal, interval, ratio, किसी में भी। तो सबसे पहला स्टेप अनुसंधानकर्ता शोधार्थी के सामने, पीएचडी स्कॉलर को क्या करना चाहिए? टेस्टिंग नॉर्मलिटी। क्या स्केल ऑफ मेजरमेंट को चेक करने के लिए हमें कोई टूल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्यों? हम सब में इतना ज्ञान और विवेक विकसित हो चुका है कि उस वेरिएबल की प्रकृति से हम जान लेते हैं कि वो किस स्केल में, जो सीवियरिटी ऑफ पेन, ये किस वेरिएबल, किस प्रकार का वेरिएबल है, किस स्केल में, इसके लिए कोई टेस्ट अप्लाई करना है क्या? नहीं करना ना। लेकिन नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई टेस्ट चाहिए। तो सबसे पहला टेस्टिंग नॉर्मलिटी। ऐसा कोई भी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऐसी कोई भी क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं है जहां हमें नॉर्मलिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एसेंशियली वी हैव टू चेक if we are conducting our study that comes under the category of quantitative researches. So we have to check the normal distribution. इस प्रक्रिया को जान लें कि नॉर्मलिटी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास 3 विधियां हैं, डिस्क्रिप्टिव है, ग्राफिकल मेथड है, फॉर्मल टेस्ट है। इन 3 विधियों को अपनाकर हम नॉर्मलिटी को चेक करते हैं। What do you mean by descriptive statistics? Since you all are engineers, descriptive statistics क्या है? Measures of central tendency and measures of variability, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और विचलन के माप, mean, median, mode, range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, skewness, kurtosis, ये सब descriptive measures है। लेकिन nowadays we analyze data by using different softwares, maybe Microsoft Excel, maybe SPSS, maybe Minitab, maybe Statista, maybe Mathematica। दुनिया भर के सॉफ्टवेयर से हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं ना, और जो टेबल जनरेट होती है उस पूरी टेबल को हम रख देते हैं इन आवर रिसर्च वर्क। इज इट ओके? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो इस डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में से, सब मापों में से, टू टेस्ट द नॉर्मलिटी वी रिक्वायर ओनली 4: skewness, standard error of skewness, kurtosis and standard error of kurtosis। 4 माप चाहिए। अब skewness क्या कहता है? Skewness measures the symmetricity of curve and kurtosis measures the flatness of the curve। और दोनों के ही साथ साथ क्या दिख रहे हैं आपको? स्टैंडर्ड एरर्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ kurtosis।
तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर मानक त्रुटि। स्टैंडर्ड एरर क्या है? वे आप तो पढ़ते हैं ना। स्टैंडर्ड एरर क्या? इनसे पूछा था उस समय, तो पूछा था टी शर्ट कैसी है, अब ये खुद कैसे हैं? अच्छे हैं। इन्होंने कहा कि अच्छे हैं। इनके अंदर एक भी बुराई नहीं है, है ना? बुराई है नहीं है। देख, वेट वेट वेट, मैंने मेरा पहला क्वेश्चन था कि कैसे, इन्होंने कहा अच्छे हैं। फिर मैंने पूछा कि कुछ बुराइयां नहीं है, कि कह रहे बुराई है। एक तरफ आप कह रहे हो बुराई है, फिर अच्छे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो? क्योंकि हमारे समाज ने काल्पनिक रेखा फिक्स कर दी है, उससे कम बुराइयां हैं तो ठीक है। जिस दिन उस काल्पनिक रेखा को क्रॉस करेंगे, ओके खुरापाती बच के रहो, कहेंगे ना, कहेंगे ना। इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर। प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यता है कि उसमें त्रुटियां होंगी। द एक्सेप्टेबल एरर्स आर नोन एज स्टैंडर्ड एरर्स। इन द सेम वे एवरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज बाउंड टू हैव सम एरर। प्रत्येक सांख्यिकी तकनीक, पहले हुई तो थी बात कि स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, these are based on probabilities, कि the acceptable errors are known as। तो ये स्क्यूनेस की वैल्यू है, ये उसका स्टैंडर्ड एरर है। वो क्यूटोसिस की वैल्यू स्टैंडर्ड एरर, तो स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू उसके स्टैंडर्ड एरर से कम होनी चाहिए। यदि कम है तो एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है। यदि नहीं है तो नॉन नॉर्मल है। यू हैव टू अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक। लिखने के थंब रूल रख लीजिए, स्टैंडर्ड एरर से कंपेयर ना करना चाहे तो। if the value of skewness as well as the value of kurtosis is in between -1 to 1, यदि स्क्यूनेस और क्यूटोसिस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, इट मींस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इज इट ओके? तो हमने तीन विधियों में से कितनों की बात कर ली? एक की कि टेस्टिंग नॉर्मलिटी बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेकंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफ में क्या होता है? एक वी हैव एक्स एक्सिस, we have y-axis, we have zero origin. A standard line is produced in this QQ plot, and all the scores should be scattered near to this line. सारे के सारे स्कोर इस लाइन के आसपास हैं। इसका अर्थ हुआ कि डेटा is normally distributed, otherwise the data will be considered as non-normal. In that case, we have to apply non-parametric. Is it okay? तीसरी विधि कौन सी है? थर्ड मेथड इज फॉर्मल टेस्ट, जिसका दूसरा कोई काम नहीं है। These tests are structured or formulated to test the normality only. There is a long list of these types of tests, and I mentioned only 4. KST, Kolmogorov-Smirnov test. आप अपने फील्ड में दुनिया भर को इसका एप्लीकेशन देखेंगे। Kolmogorov-Smirnov test. Second one is Shapiro-Wilk test, SWT, Shapiro-Wilk test. Third one is ADT, Anderson-Darling test. Fourth one is RJT, Rayan-Joyner test. आप किस सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? SPSS. The SPSS, Statistical Package for Social Science, that provide the facility of first two tests, KST and SWT, Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilk test. इसके अतिरिक्त ADT और RJT, Rayan-Joyner and Anderson-Darling test, the facility of this is provided by another software that is known as Minitab. लेकिन हमें तो केवल एक ही तो चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। वो जान, टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। और सैंपल साइज का कंसेप्ट क्या था और क्या है? व्हाट वाज दैट एंड व्हाट इज दैट? बताइए। आपने सुना होगा, देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ स्मॉल सैंपल एंड लार्ज सैंपल। स्मॉल सैंपल मींस इफ यू कंडक्ट योर स्टडीज less than 30, that is considered as a small sample. If you conduct your studies in between 30 or above 30, that is considered as a small sample, large sample. But this concept has been changed. Instead of these two, there is a concept of one more. Concept of small sample is same. Less than 30 considered as small. Moderate sample size की चर्चा भी हो गई है। Moderate sample size. What do you mean by moderate sample size? If you conduct any research by taking the units in between 30 to 100, that is considered as a moderate sample size. And above 100 and above is considered as a large sample. Try to recall, try to remember. I have said
टेस्टिंग नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। तो स्मॉल सैंपल की अलग तरीका होगा, मॉडरेट सैंपल का अलग तरीका होगा और लार्ज सैंपल का अलग तरीका होगा। तो कहां से शुरू करना चाहिए? स्मॉल सैंपल, तो हेडिंग होनी चाहिए टेस्टिंग नॉर्मलिटी ऑफ स्मॉल सैंपल साइज। टेस्टिंग नॉर्मलिटी ऑफ small sample size. Write down a single sentence. There is no need to test. Always assume that data is non-normal, especially in earth sciences. 30 से कम इकाइयों को लेकर चल रहे हैं तो हम मान के चाहिए कि नॉन नॉर्मल है. Then we cannot apply. We should not apply parametric and we should apply non-parametric. टेस्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं. अब क्या बात करें? Testing normality of moderate sample size. How many methods we are having? 3: descriptive, graphical, formal. We have three methods. तो write down the sequence. First apply formal test. सबसे पहले formal test लगाइए. Either KST, SWT, ADT और RJT. What will be the answer? उसका उत्तर क्या होगा? टेस्ट क्या कहेगा? टेस्ट क्या कहेगा? Yes, कि whether it's normal or non-normal. यदि वो कहता है कि नॉन नॉर्मल है, then accept the results and apply non-parametric. यदि वो कहता है नॉर्मल, 100% do not rely on this. Cross test by remaining two methods. Remaining two methods कौन कौन से? Descriptive and तो मॉडरेट सैंपल साइज में तीनों मेथड कहते हैं नॉर्मल है तभी मानिए, पैरामेट्रिक अदरवाइज अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक. इज इट ओके? अब क्या बात करें? टेस्टिंग नॉर्मलिटी ऑफ लार्ज सैंपल साइज. मॉडरेट सैंपल साइज में फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड? फॉर्मल टेस्ट. Same, the sequence will be same. First apply formal test. What will be the answer? Normal है. Moderate में normal है कहा था तो क्या किया था? Cross test. Here there is no need to cross test. Accept the results and apply parametric. ऐसा क्यों? Answer is these formal tests are very accurate in case of large sample and these are very sensitive in case of moderate sample size. क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मल टेस्ट, चाहे हम कॉलमोगर और स्मिर्नोव टेस्ट की बात करें, शापिरोव टेस्ट की बात करें, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट की बात करें, रैम टेस्ट की बात करें, ये चारों ही परीक्षण, चारों ही टेस्ट लार्ज सैंपल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. यदि ये टेस्ट कहता है कि नॉन नॉर्मल है, ये टेस्ट कहता है, तो मॉडरेट सैंपल साइज में नॉन नॉर्मल को हमने क्या किया था? एक्सेप्ट कर दिया था, नॉन पैरामेट्रिक का अप्लाई किया था. यहां कहता है नॉन नॉर्मल. इन दैट केस डोंट रिलाई, क्रॉस टेस्ट नॉन नॉर्मलिटी, क्योंकि लार्ज सैंपल बहुत कम संभावना है नॉन नॉर्मल होने की. अर्थ साइंसेस में एक डेटा, एक आउटलेयर, एक एक्सेप्शनल स्कोर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, पूरे आंकड़ों का कबाड़ा कर सकता है. इन दैट केस वी हैव टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स एंड रिमूव द आउटलायर्स. दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अनएथिकल इशू. डेटा को रिमूव करना अनएथिकल कब कहलाएगा? If you eliminate after the analysis of data at the last stage of the research, that will be considered as unethical issue. But during the screening of the data, during the primary stage of the screening, if we eliminate, that will not be considered as unethical issue. Is it okay? आप मेरी बात से एग्री है ना? चलो एक जोक सुना देता हूँ. रिजेक्टिंग टाइम में आ गई. रिजेक्टिंग टाइम में आ गई. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च की बात भी करें. इफ यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन रिसर्च, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च व्हिच आर डन बाय द इंडिविजुअल्स. वन इज एनिमल रिसर्च आल्सो, और वन इज ह्यूमन रिसर्च. मानते हो ना? एंड एनिमल रिसर्च किस पर की जाती है? ऑन द स्पीसीज दैट हैव द सेम मेटाबॉलिक पाथवेज एज ह्यूमन बीइंग्स. जिसकी मेटाबॉलिक, जिसमें हार्ट भी हो, लंग्स भी हो, किडनी भी हो, मेटाबॉलिक पाथवे सेम हो ना. मछली पर देखी कोई रिसर्च? नहीं देखी ना. रेट्स पर आपको कुछ नहीं मिला. हॉस्टल में कॉकरोच भर मारती, बोले मैं कॉकरोच पर रिसर्च करूंगा. ठीक है.
डिब्बे में भर डाले, डिब्बे सामने रखा है, कॉकरोच से भरा हुआ है, प्रफुल्लित, गोइंग टू डू रिसर्च। कॉकरोच एक उठाया, कैंची से उसको छोड़ाया, रन, दौड़ गया भाई वो। दूसरा उठाया, एक पैर काटा, रखा, रन, दौड़ गया। लेकिन ही ऑब्जर्व ए डिफरेंस। क्या डिफरेंस आया? स्पीड कम हो गई। अगला उठाया, दो पैर काटे, बोला रन, स्पीड और कम होगी। और सारे पैर काटे, रन, नहीं दौड़ा। तो बड़े प्रफुल्लित, आई इन्वेंटेड वन थिंग, कि शायद सारे पैर काट देने से कॉकरोच सुनना बंद कर देता है। यानी इस तरह के भी एक एग्जांपल्स, लेकिन माय पर्पस इज टू डिलीवर टेक। अब मेन कहानी शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल टेक्निक्स को कितने भागों में बांटा था? कौन कौन से? पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक को भी ठीक से समझने के लिए वी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, कंपैरेटिव एंड रिलेशनशिप। हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक और सहसंबंधात्मक। तो कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, तुलनात्मक सांख्यिकी। सबसे स्मॉलेस्ट कंपैरिजन कैसा हो सकता है? सबसे तुलनात्मक कंपैरिजन कैसा हो सकता है? सर सबसे तुलना सिंपल सा आंसर है, बिटवीन टू ग्रुप्स। सबसे छोटी तुलना कैसी हो सकती है? इन बिटवीन टू ग्रुप्स इट्स पॉसिबल। मानते हो ना? तो कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, मोर देन टू ग्रुप्स की तुलना भी हो सकती है, कोवेरिएंट के साथ भी हो सकती है। और सबसे छोटा रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? बिटवीन टू वेरिएबल्स, मोर देन टू वेरिएबल्स। एंड आफ्टर रिग्रेशन वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो शुरू कहां से करें? फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट? Between two groups. The technique which is used to find out the significant difference between two groups. दो समूहों की तुलना करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है, that is known as टी टेस्ट। टी टेस्ट, टी परीक्षण। तो हम टी टेस्ट आप देखेंगे डिफरेंट रिसर्च स्टडीज में, टी टेस्ट इज अप्लाइड, कि टी टेस्ट का हम उपयोग करते हैं। टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक used to find out the significant difference between the means of two samples. दो समूहों की तुलना नहीं कर रहे, वास्तव में हम कहते हैं बेशक दो समूहों के माध्यों की तुलना कर रहे हैं। We are comparing the means of two samples. Is it okay? समूह कितने होंगे? दो. But there are three different types of t-tests. First one is independent t-test. यानी दो समूहों की तुलना भी तीन विभिन्न रूपों में की जा सकती है। We can compare two groups in three different forms. First one is independent t-test. This independent t-test is known by 4 different names. अलग अलग लिटरेचर में, अलग अलग किताबों में 4 अलग अलग नामों से हम एज अनुसंधानकर्ता ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेटर वी कंफ्यूज हम हो, ठीक है। तो कौन कौन से? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, सिंपल टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट एंड अनपेयर्ड टी टेस्ट। अगेन आई रिपीट, दिस इज नोन बाय 4 different names: independent t test, student t test, simple t test and unpaired t test. This independent t test is used to compare two independent groups. Comparison of the quality of soil of the two different states of India. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश भारत के दो राज्यों की एक जमीन की, एक भूमि की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है कि नहीं हो सकता? कितने ग्रुप है? किस रूप में? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। किस वेरिएबल की तुलना कर रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ एंजाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, कंपैरिजन ऑफ द इनकम ऑफ रूरल एंड अर्बन पीपल। कुछ भी हो सकता है ना। समूह दो होंगे, किसी एक वेरिएबल को लेकर तुलना करते हैं। These types of studies can be conducted. तो किस प्रकार का अध्ययन कहलाया गया? किस प्रकार का अध्ययन कहलाया गया? Is it experiment or survey? It's a survey. It's a comparative survey. Is it okay? Clear? Next. कितने ग्रुप थे इसमें? दोनों कैसे थे? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट टी टेस्ट, आश्रित टी परीक्षण। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कितने नामों से जाना जाता है? 4: इंडिपेंडेंट
simple, student, unpaired. This dependent t-test is also known by 4 different names. पहला आपके सामने डिपेंडेंट t-test, correlated t-test, paired t-test, repeated measure t-test. इंडिपेंडेंट t-test किस प्रकार का अध्ययन करता था? अभी बताया था अभी आपने, सर्विस स्टडीज. ये कैसे करेगा? निष्कर्ष निकालते हैं. इफेक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल ऑन प्रोडक्शन, या छोड़ दीजिए, इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन प्रोडक्शन. इज इट ओके? आपने बिना फर्टिलाइजर के प्री टेस्ट लिया, 2 महीने तक खाद डाला, उसके बाद देखा तो कितने कॉलम्स हैं आपके पास? 2. प्री और पोस्ट. वहां पर कितने कॉलम थे? 2. कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और दोनों इंडिपेंडेंट थे. यहां डिपेंडेंस है. यू आर टेकिंग 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम ग्रुप. यू आर कंपेयरिंग प्री वर्सेस पोस्ट. The technique which is used to compare the 2 different observations of the same group is known as dependent t-test. तो dependent t-test किस प्रकार के अध्ययन करता है? Dependent t-test किस प्रकार के अध्ययन करता है? भाई आपने बताया था ना कि इंडिपेंडेंट t-test is used to conduct surveys. वो सर्वेक्षण था, तुलनात्मक सर्वेक्षण. ये किस प्रकार का अध्ययन है? स्पष्ट सी बात, एक्सपेरिमेंट. इट मींस, आपने बताया ना अभी, experimental study. It means independent t-test is used to conduct survey studies. On the other hand, dependent t-test is used to conduct experimental studies. Is it okay? Third one is a one sample t-test. One sample t-test. एक न्यायाधीश की परीक्षण. आपका कोई टारगेट कोई होता होगा कि भाई एक आइडियल कि वो स्टेट बहुत अच्छा है. छोड़ दीजिए, यहाँ की जितने भी फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बड़ी प्रभावित होगी ब्रह्म कुमारी शिवानी से. कितनी शांति में रहती है, फेस पर भी शांति रहती है, इरिटेट नहीं होती है. हम भी क्यों नहीं ऐसा बने? ऑल वांट टू कंपेयर देमसेल्व्स विद सिंगल वैल्यू. टाइटल बनाया कंपैरिजन ऑफ द एंजाइटी लेवल ऑफ द फीमेल पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस ग्रुप विद द एंजाइटी लेवल ऑफ ब्रह्म कुमारी शिवानी. एक तरफ पूरा समूह है और एक तरफ सिंगल वैल्यू. The technique which is used to compare a group with a single value, the technique which is used to compare a group with a specified constant, the technique which is used to compare a group with the target, the technique which is used to compare a group with the normative value, that is known as one sample t-test. इसको आज तक मुझे ऐसा कोई अनुभव किसी किताब का नहीं मिला, पुस्तक का, जिसमें इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नाम हो. This is known by one sample t-test. आपके क्षेत्र में, Earth sciences में, you can compare production with a target. Yeah, you can compare the quality of soil with the standard value of the soil. The technique which is used to compare a group with a single value is known as one sample t-test. तो आपने बताया था कि इंडिपेंडेंट t-test सर्वेक्षण अध्ययन करता है. आप सबने बताया था लगभग कि डिपेंडेंट t-test किस प्रकार का अध्ययन करता है? अब मैं पूछता हूं, वन सैंपल t-test किस प्रकार का अध्ययन करता है? सर्वे कर रहा है ना. वहां 2 ग्रुप थे, यहाँ है तो सर्वे है ना. what is the difference between survey and experiment? Survey studies are based on only observations. You do not give any treatment. यहाँ इसमें एक्सपेरिमेंट स्टडीज में you give treatment. You hypothetical example में आपने फर्टिलाइजर का प्रभाव देखा, तो you are giving the fertilizer. उसमें automatically something everything takes place. Is it okay? ठीक है, चलिए अभी रिजेक्टेड टाइम में तो नहीं है ना. One more technique, last technique. We will discuss by one more technique. केवल एक और टेक्निक की बात करेंगे. लास्ट टेक्निक, comparison between more than 2 groups. The technique which is used to compare more than 2 groups is known as analysis of variance. तो t-test कितने समूह की तुलना करता था? 2. कितने रूपों में? 3. इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, वन सैंपल. वन वे एनोवा एक्सटेंशन है इंडिपेंडेंट t-test का.
तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो 5 विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन हम केवल एक की बात करेंगे, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में क्या था? 2 समूह थे. टाइटल को थोड़ा एक मॉडिफाई करते हैं. कंपैरिजन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल अमंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. कितने ग्रुप हो गए? मे बी 4, मे बी 7, मे बी n नंबर्स. 2 से अधिक समूह के बीच सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है वन वे एनालिसिस. 2 समूह की तुलना करनी है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र समूह, समूह की नहीं, इंडिपेंडेंट ग्रुप. 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की तुलना किससे की? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट से. 2 से अधिक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की तुलना किससे की? वन वे एनालिसिस. ठीक है. अब एक टेक्निक, क्योंकि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के एक्सटेंशन की हमने बात कर ली, वन वे एनोवा, तो क्यों ने हम डिपेंडेंट टी टेस्ट के एक्सटेंशन की बात भी कर लेते हैं. ठीक है. तो डिपेंडेंट टी टेस्ट के एक्सटेंशन, डिपेंडेंट टी टेस्ट का एग्जांपल बनाते हैं. इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स नाम की दवाई का वाई नाम की बीमारी पर प्रभाव. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? ड्रग एक्स. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई डिजीज. आपने वो मेडिसिन कितने दिनों तक दी? मान लीजिए 10 दिन. उस 10 दिन में प्री और पोस्ट के बीच में अंतर कैसे ज्ञात किया? किसके एप्लीकेशन से किया? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, सॉरी डिपेंडेंट टी टेस्ट. डिपेंडेंट टी टेस्ट तरीका, आपने कहा ट्रीटमेंट दिया, आपने मेडिसिन दी 10 दिन. हो सकता है कि पहले 2 दिन में मेडिसिन ने ठीक किया हो, उसके बाद मेडिसिन का रिएक्शन हुआ, ओवरडोज हो गया हो और गड़बड़ हो गई हो, तो यू रिक्वायर द मेजरमेंट ऑफ द एग्जैक्ट डेट ऑफ इंप्रूवमेंट. तो वहां पर कितने ऑब्जर्वेशन थे डिपेंडेंट टी टेस्ट में? 2. किस रूप में? प्री और पोस्ट. यहां पर द टेक्निक विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द मोर देन 2 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम ग्रुप. प्री टेस्ट लिया, 2 दिन दी, मिड टेस्ट 1, मिड टेस्ट 2, फाइनल टेस्ट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. तो कौन सी टेक्निक ज्यादा सुटेबल होगी? अभी कुछ बात, मैं एक शब्द मैंने सुना था, एक लाइन सुनी थी मैंने, जो सर थे कोऑर्डिनेटर, वो कह रहे थे कि एक शब्द आया था ट्रेंड, वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड, ऐसा कुछ शब्द उन्होंने कहा था, याद हो तो लाइन कही थी. तो ट्रेंड इन अर्थ साइंसेज, यू कैन फाइंड आउट द ट्रेंड ऑफ द इंप्रूवमेंट. ट्रेंड मींस where we have more than 2 observations, we can find out the trend. Increasing trend है, decreasing trend है, static trend है. You may find out linear trend, you may find out quadratic trend, you may find out cubic trend and so on. तो ये जो उस टेक्निक का नाम है रिपीटेड मेजर एनोवा. तो रिपीटेड मेजर एनोवा किसका एक्सटेंशन हो गया? डिपेंडेंट टी टेस्ट का. तो वी हैव discussed about the application of the 5 techniques that comes under the category of comparative statistics from the main category of parametric. Independent t test, dependent t test, one sample t test, one way ANOVA and repeated measure ANOVA. Now your questions are invited. अब आपके प्रश्न आमंत्रित हैं. Your questions are invited. आपके प्रश्न आमंत्रित हैं. पूछिए.